हेलो 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 हेलो। अरे वो तो बहुत सुखद था तो वो कोई बात नहीं, लेकिन वो वाली बात खतरनाक है थोड़ी कि ये चीज बोलिएगा। चलो आ जाओ। अभी बाद में टेक्स्ट हो गया है। अच्छा, ये आउट ऑफ सेशन है। उसके बाद हमारे ये है फाइल चालू काम करते हो? काम करते हुए ये 797600। On behalf of KPCH, I would like to welcome you all for today's seminar on empowering handicraft MSMEs access to capital through smart credit solution and automatic GST refund using technology. To begin with, I would like to welcome Shri Ramji Suneja ji, former President IIA, Shri Irfan Haq, President Saharanpur Manufacturers Association, Shri Mohammad Azhar ji, General Secretary, Saharanpur Carving Manufacturers Association, and our eminent speaker, Mr. Nishan Bhaskar, who is Assistant Director Business Credits, and CA Kapil Mahani, who is co-founder of My GST Refund. I would like to welcome all for a small lamp lighting ceremony. इधर से लो, इधर से Please sir, lamp light. साइड में सुबह शाम की भाई हाँ गुड्डू भाई ये सही लगा रहा है लगाने का आगे बढ़ेगा नहीं चलाना है एक आप और कोई काम लो जी अरे चलाना ले लो हाँ लिखी लगी इसका आ जाओ लगा लो हाथ और लगा लो। आप ही चलाओ चला आ जाओ ठीक है सामने भैया लो Mr. Nishan Bhaskar. Now I would request Sri Mohammad Azhar ji to present the bouquet to Kapil Mahani.
kindly start his presentation. Before starting his presentation, I would like to give a brief about Mr. Nishant. Nishant Bhaskar leads Netflix. He has been instrumental in launching and scaling operations for ATM, Amazon, and now Netflix. So hand over to Nishant. From the business team, and just let me inform you first about Creditix. Creditix क्या है? So we are a universal partner, जैसा कि मेरी presentation में भी पहली slide आपको दिख रही है. So universal financing partner है हम, एक manufacturer. So be it exports, be it imports, या फिर आपको domestic financing में किसी भी तरह का कोई solution चाहिए, तो वो सारे solutions Creditix आपको देता है. Creditix कंपनी स्टार्ट हुई थी साल 2015 में विद अ विजन ऑफ इंडस्ट्रियल B2B कॉमर्स. सो जैसे कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जिससे कि आज के डेट में कोई भी कस्टमर कुछ भी अपने घर में रिटेल सेल्स की तरह कोई भी सामान मंगवा सकता है, वैसे ही Creditix इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में और US में बिल्ड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर जस्ट लाइक अमेजोन एक फैक्ट्री परचेज मैनेजर भी Creditix को अपने अमेजोन की तरह यूज़ कर सकता है और फैक्ट्री में मशीन के अलावा जो भी सामान रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें Creditix.com से खरीद सकता है. सो सबसे पहला सोल्यूशन है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी फैक्ट्री को रन करने के लिए, वो Creditix कर रहा है आज के डेट में. एंड हमारा जो कस्टमर बेस है, अगर आप बात करें तो इंडिया की अगर टॉप 3000 कंपनीज जो भी हैं उसमें 80% कंपनीज आर Creditix कस्टमर्स. बी इट हीरो साइकिल्स, हीरो मोटर्स, टाटा स्टील, वेदांता, ये सारी कंपनीज हमारे साथ काम कर रहे हैं. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यू नेम अ कॉन्ग्लोमरेट एंड एवरीवन इज एसोसिएटेड विद Creditix. सो हम जो MRO सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं Creditix के माध्यम से, और एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. आपको अपनी फैक्ट्री को रन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इवन एक स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिस चेयर टू अ स्मॉल लेक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन Creditix.com. And how this is helping the small and medium enterprises vis-a-vis the large enterprises is, आज के डेट में जो आपके फैक्ट्री परचेज मैनेजर हैं या जो अकाउंट्स पर्सन हैं, they must be occupied, where most of the day's bandwidth is going in managing the vendors who are visiting the office. तो Creditix के माध्यम से क्या होता है, आपके पास एक वन बिलिंग सॉल्यूशन हो जाता है कि Creditix से ही सारा सामान आपके पास पहुंच रहा है at the best rate which is not available in market, first thing. And you get a credit of up to 60 to 90 days to pay your bills, and that to only one entity which is Creditix. आपका GST and ये जो compliance होते हैं, ये सारी चीज़ें भी follow हो जाते हैं, which is difficult to follow through small vendors. And आपका revenue leakage भी, जो promoters हैं they will be understanding कि जो revenue leakage होता है ये multiple vendors को manage करने के लिए, वो भी बचता है. So we have scaled up at a pace on the Creditix side, and अगर मैं उस सेगमेंट में बात करूँ तो e-commerce साइड में we are working with more than 2500 plus anchors, so large conglomerates, and उनके जो vendors हैं there are more than 25,000 SMEs जो इन्हीं 2500 anchors के vendors हैं जो हमसे परचेजिंग करते हैं. So this is the scale at which we are building. Last year we clocked a turnover of approximately 7,000 crore, and we are a unicorn in India. We are a IPO bound organization. और in terms of अगर offices और regulations की बात करूँ, so Creditix started in 2015. It was started by Mr. Rahul Garg. Rahul is our founder and he is based out of Faridabad. नोएडा में हमारी कंपनी का पहला ऑफिस स्टार्ट हुआ था 2015 में. मिस्टर श्री रतन टाटा जी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पहला फंडिंग किया था Creditix को. Prior to Creditix, Mr. Rahul Garg was working with Google as its Southeast Asia business head, and he is a pass out of IIT Kanpur and ISB Hyderabad. After Mr. Ratan Tata, World Bank, IFC showed their faith in Creditix, तो World Bank की इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, followed by Sequoia Capital, Excel Partners. So even Mr. Singhania from JK Papers, he is one of the investors. So there are total 19 prominent investors in Creditix, and till today we have raised more than $500 million in last 10 years of our journey.
and we are scaling at a fast pace. जो मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया, इस मॉडल में देयर वाज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि कोई भी सामान किसी को खरीदना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है मेरे ही प्लेटफॉर्म से। सो 2019 में हमने वो वर्किंग कैपिटल का पेन सॉल्व करने की कोशिश करी बाय वर्किंग एज अ ट्रेड क्रेडिटर। सो हम अपने जो भी लोग उनसे मेरे प्लेटफॉर्म से या डायरेक्टली हमसे स्टॉक खरीदते थे या हम उनको सप्लाइज करते थे, वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट लाइन टू मोस्ट ऑफ आवर क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वी एंटर्ड इनटू अ फाइनेंसिंग बिजनेस 2019 में। 2021 was a breakthrough year for Moglix when Moglix acquired a company called Nufai based out of Singapore, and that's how Credlix came into picture. Credlix was established by Moglix as a supply chain finance vertical within the company. I represent, so me, my colleagues Piyush and Sagar are there and Kaika is there. So we all four represent Credlix, the supply chain financing division of Moglix. Now supply chain financing में हम लोग क्या क्या करते हैं, how we are regulated by, we have the regulations of government also. So 2021 में जब हमने एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का के लिए कंपनी खरीदी Nufai, that's how we started the factoring business. इसके अलावा हमारे पास NBFC का लाइसेंस हमें मिला 2024 के अर्ली पार्ट में। हमने एक कंपनी एक्वायर करी थी, there was an NBFC called Shield Finance which we acquired, and now it is known as Vanik Finance Private Limited. So that is an NBFC and the brand name is Credlix only. So these are the two different business we currently do in Credlix. One is export factoring, जहाँ पे हम आपको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग देते हैं उसी करेंसी की में जिस करेंसी में इनवॉइस बनी हुई है, और 90% हम आपको फाइनेंस करते हैं। सेकेंड इज मेरा NBFC वाला पार्ट, जहाँ पे मुझे लाइसेंस मिला लास्ट ईयर, एंड वी स्टार्टेड स्केलिंग बिजनेस, हाउ वी स्केल देयर। सो करेंटली वी आर ऑथोराइज्ड फाइनेंसिंग पार्टनर ऑफ आदित्य बिरला फैशन रिटेल, वेदांता, इनके साथ हम ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं। इनका डीलर फाइनेंसिंग और वेंडर फाइनेंसिंग प्रोग्राम रन करते हैं। दिस इज फॉर एन एग्जांपल कि हम ये मास स्केल पे ये बिजनेसेस कर रहे हैं, जहाँ पे कि सप्लायर बेस मस्ट बी मोर देन 1500 वेंडर्स या 1500 डीलर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स व्हिच आई विल टेक अप इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ये मेरे फुटप्रिंट्स हैं जहाँ पे मेरे ऑफिसेज हैं। सो वी हैव 40+ ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया एंड सिमिलरली 40+ हमारे वेयर हाउसेज भी हैं। नाउ व्हेन आई मेंशन वेयर हाउसेज तो आप सोच रहे होंगे कि वी आर अ B2B कॉमर्स कंपनी, वी आर अ फाइनेंसिंग कंपनी, में हमें वेयर हाउस की क्या ज़रूरत है। सो फॉर एग्जांपल एज अ SME अगर कोई एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट बना रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग हब में बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर, या कोई स्टील किसी को खरीदना है एज अ रॉ मटेरियल, सो as I am associated with Jindal from the anchor side, from Tata Steel, we procure such raw materials and keep it in our warehouse, and then we sell it after holding it for some time, and then we sell it at some better price. तो शायद अगर कोई SME कोई X प्राइस में खरीद रहा होगा तो मैं शायद उसको we are helping and a single point solution. So मेरे पास 40+ warehouses हैं and we have a logistics team जो आपके फैक्ट्री अंदर उस प्रोडक्ट को डिलीवर भी करती है, एंड इन सर्टेन ज्योग्राफीज वी हैव अ टैक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ ज्वेलर्स, एंड मोस्टली वी डिलीवर इन 24 to 48 आवर्स जब भी आपके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। वी आर कंपनी बेस्ड आउट इन, सो हमारे जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं अगर मैं बात करूँ, सो सिंगापुर में वी हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, देन इंडिया वी हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, US में वी आर प्रेजेंट, मेक्सिको वी हैव अ टीम, मिडिल ईस्ट वी हैव अ फुल फ्लेजेड टीम ऑफ मोर देन 200 people. So we will discuss in detail the interest rate के माध्यम से आपको, and so that is how अगर आप बात करें फॉरेन कॉस्ट ऑफ लिविंग तो वो काफ़ी बेटर हो चुका है। अगर मैं 2024 में चेंज हुआ है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी है। हम लोग देख भी रहे हैं कि इंडिया में जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोनेंशियल वे में चाइना पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो चाइना में भी हाईली इम्पैक्टेड एंड इंडिया उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज कोविड के टाइम में आई एम श्योर काफ़ी आप लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स ने ये फेस किया हुआ सिचुएशन की US बायर्स के पास काफ़ी सारी इन्वेंट्री इकट्ठा हो गई है और वो नए ऑर्डर्स
देने में थोड़ा सा रुक रहे हैं पोस्ट कोविड। तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। इन्वेंट्रीज जो हैं काफ़ी कम हुई हैं पहले के कंपैरिजन में। देन इंडियन गवर्नमेंट का भी जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा है, मेक इन इंडिया के ऊपर पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। तो ये सब सिचुएशंस हैं और प्लस सोफर रेट जो कम हुआ है, यूएस में फिर रेट लेंडिंग कॉस्ट जो कम हुआ है, इसकी वजह से भी काफ़ी पुश आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। रिस्क में हम सभी लोग अवेयर हैं, जो अभी थोड़ा सा टैरिफ का इम्पोज किया है यूएस गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में। इवन द बायर्स टुडे आर नॉट क्लियर, सो आई कीप ऑन कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ बायर्स आल्सो जो हमारे पोर्टफोलियो में है। इवन दे आर नॉट क्लियर कि उनको क्या करना है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम अपने ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स पे प्राइसिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपने सेलर्स पे वो प्राइस इम्पोज करूँगा। सो देयर आर रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। तो फैक्टरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको बेसिकली समझ में आएगा। सो क्रेडिट्स क्या करता है और फैक्टरिंग चलता कैसे है ये समझते हैं। सो फैक्टरिंग का मतलब होता है सर क्रेडिट इंश्योरेंस प्लस लेंडिंग। आज के डेट में आप ईसीजीसी से कवर लेते होंगे या किसी और प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस कवर लेते होंगे अपनी गुड्स को जब आप शिफ्ट करते होंगे उसका रिस्क मिटिगेट करने के लिए। सो दैट इज द इंश्योरेंस कवर जहाँ पे आपका रिस्क मिटिगेट हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज आप बैंक के पास जाते होंगे जब आप बैंक आपको ऑब्वियसली कैपिटल दे रहा है, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, ये सारी चीज़ें। फैक्टरिंग में क्या होता है, फैक्टरिंग इज अ कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस प्लस लेंडिंग। इसको कंबाइन करके फैक्टरिंग प्रोडक्ट बनाए। इसमें सप्लायर जो है वो गुड्स को शिप करता है, बायर जो है गुड्स इनवॉइस जो आप भेज रहे हो उस इनवॉइस को कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये इनवॉइसेज ओके हैं एंड आई एम विलिंग टू पे टू द फैक्टरिंग कंपनी। वंस दैट इज डन, उसके बाद फैक्टरिंग कंपनी आपको पेमेंट कर देती है। सो दिस इज हाउ द ओवरऑल कंस्ट्रक्ट वर्क्स इन फैक्टरी। तो क्रेडिट्स ऑन द एनबीएफसी साइड प्री शिपमेंट, हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग करते हैं और ऑन द एक्सपोर्ट साइड वी आर एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कंपनी। तो प्री शिपमेंट में हम लोग आपका जब पीओ आ जाता है तो आप आज के डेट में मल्टीपल बैंक्स, एनबीएफसी के थ्रू जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल हैं उनसे कैपिटल लेते हैं और काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके। देयर कैन बी अ टाइम जब काफ़ी करंट सिचुएशन आ जाती है, आपकी बैंक लिमिट्स खत्म हो रही हैं या ऑर्डर्स आपने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, आपके पास लिमिट सफिशिएंट है अपनी तरफ से प्री शिपमेंट देने का, और हम ऑलमोस्ट जो आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री आपके पास जो पीओ आया है वो पीओ का मैं आपको 40% जो है प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग के रूप में आपको दे देता हूँ 60 डेज प्रायर टू डिलीवरी। तो आज मैं 90% ओवरऑल देना है मुझे इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ वो शिपमेंट, तो मैंने 40% जो है आपको अपनी एनबीएफसी से दे दिया है इन INR। और जब आपकी शिपमेंट चली जाती है, सेल कर जाता है, तो मैं आपको 90% पे करता हूँ और अपना INR वाला 40% वापस देता हूँ। तो दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स। 40% आपको 60 डेज पहले दे देते हैं और बैलेंस जो 50% है वो आपको मिल जाता है जब आपकी शिपमेंट निकल जाती है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जो फैक्टरी नहीं ले रही थी और जो कंपनी फैक्टरी ले रही है उनके ग्रोथ में क्या, रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट आया है। सो अगर कोई कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही थी तो वो अगर ट्रेडिशनल चैनल पे, ट्रेडिशनल फंडिंग चैनल से काम कर रही है लाइक बैंक्स और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, तो एक सर्टेन लेवल पे ही ग्रो कर पाए। पेमेंट आपके पास 60 डेज में आ रहा था या 90 डेज में आ रहा था या 120 डेज में आ रहा था, वो आपको डे 0 पे मिल गया है जब आपका BL आपके हाथ में आएगा। सो वंस यू शेयर द BL विद अस, BL और बाकी की शिपिंग डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी आप मेरे पोर्टल पे अपलोड करते हो, विदिन 24 आवर्स हम फंड करते हैं। सो बेसिकली आपका कैपिटल रोटेशन बढ़ गया है। यू कैन यूज दैट मनी टू मैन्युफैक्चर मोर फॉर दैट पर्टिकुलर डेटर, या उस पैसे को आप अपने किसी और डेटर के लिए ज़्यादा ऑर्डर्स लेके अपने टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड बेस्ट थिंग जो बेनिफिट है फैक्टरिंग का, आपको ये जो कैपिटल फैक्टरिंग कंपनी से या मुझसे मिल रहा है, ये कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट है। आपकी बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स में, बैलेंस शीट में ये एज अ डेट नहीं है, बिकॉज जो आपकी इनवॉइस है उस इनवॉइस पे सिर्फ 2 चीज़ें आ रही हैं। एक मेरी कंपनी का नाम एज अ थर्ड पार्टी या नोटिफाइड पार्टी में आता है, और सेकेंड थिंग कि मेरा असाइनमेंट क्लॉज आ जाता है। व्हाट इज असाइनमेंट क्लॉज?
मेरा बैंक डिटेल्स और आप उसमें मेंशन करते हो कि दिस इनवॉइस हैज बीन सोल्ड एंड असाइन्ड टू क्रेडिट्स. So once you write this line and mention my bank details, it's a kind of trading of invoices which is happening. So basically मैंने आपकी invoice को खरीदा है और एक certain discount काट के मैंने उसका पैसा आपको दिया है. So it's a trading of invoice which is happening. So मैं आपको लोन नहीं दे रहा हूँ किसी भी प्रकार का, आपकी बैलेंस शीट में लोन नहीं दिखता है. It's not a INR funding, it's a डॉलर और यूरो फंडिंग, जो भी करेंसी में आपके बायर ने आपको पीओ दिया है और आपने इनवॉइस बनाई है उसी करेंसी में आ रहा है. इट्स जस्ट इक्विवेलेंट टू अ पेमेंट कमिंग फ्रॉम अ बायर. एंड टुडे द बेस्ट पार्ट इज दैट 3 years बैक जब हमने ये धंधा शुरू किया था उस टाइम पे हमें आउटरीच करके लोगों को बताना पड़ता था कि व्हाट इज फैक्टरिंग. बट टुडे द ब्यूटी इज दैट थैंक्स टू ETCH एंड many other leading government organizations जिनकी वजह से एक्सपोर्टर्स आर टुडे अवेयर कि हाँ फैक्टरिंग लेने से मेरा रिस्क मिटिगेट भी हो जाता है और मेरा कैश फ्लो भी इम्प्रूव हो जाता है. मेरे पास 2 प्रकार के कस्टमर्स आते हैं, रादर 3 प्रकार के आते हैं. एक बोलता है कि जी मेरा बायर जो है वो बहुत लेट पेमेंट करता है एंड मेरे को रिस्क है कि कभी बायर घोस्ट कर दिया, नॉन पेमेंट का सिनेरियो क्रिएट हो गया तो मैं क्या करूँगा. एंड इन दोस केसेस बिलीव मी फैक्टरिंग इज द बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज आपको तो आपका 90% डे 1 पे मिल चुका है. सिर्फ क्वालिटी इशू है एक केस जहाँ पे कि हमारा इंश्योरेंस कवर जो है एप्लीकेबल नहीं होता है. इसके अलावा बाकी सारे सिनेरियोज जहाँ पे बायर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है पेमेंट करने में, लेट कर रहा है, वो सारे केसेस में वी आर द वन हु विल एक्ट एज अ कलेक्शन एजेंट ऑल्सो फॉर यू. प्लस अगर कोई नॉन पेमेंट का सिनेरियो क्रिएट होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम यू बिकॉज इट इज अ नॉन रिकॉर्स फैसिलिटी एंड रिकोर्स इज ओनली इन केस ऑफ तभी आपकी लायबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज कवर्ड, आपका पैसा सेफ है. सो जिनको रिस्क मिटिगेट करना होता है वो लोग फैक्टरिंग का प्रोडक्ट जरूर लेते हैं. और कई बार सिनेरियो होते हैं जो मैंने आपको बताया कि कभी करंट सिचुएशन है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, लिमिट्स कम पड़ रही हैं बैंक से. इन दैट केसेस लोग फैक्टरिंग के लिए जाते हैं बिकॉज कैश फ्लोज इंप्रूव हो जाते हैं, आपकी वेंडर पेमेंट्स भी टाइमली हो पाती हैं. एंड द थर्ड थिंग इज जो मैंने बताया कि अगर कोई कंपनी ये देखेगी कि मुझे अपना टर्नओवर भी बढ़ाना है और मुझे अपने डेट्स को भी कंट्रोल में रखना है तो वो कंपनीज और लेकिन रिस्क भी नहीं है कोई और कैश फ्लो की टेंशन नहीं है, बट अपने डेट को कम रखना है और अपने टर्नओवर को बढ़ाना है, कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाना है, वो कंपनीज भी फैक्टरिंग के लिए आती हैं बिकॉज factoring is a debt-free product and this is helping them in a big way. And there are lot of leading names in terms of अगर मैं बात करूँ इंडिया की बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज क्रेडिट्स के साथ आज के डेट में काम कर रही हैं और फैक्टरिंग ले रही हैं. एंड द रीजन इज दिस ओनली कि उनको अपना कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज करना है, अपने बैंक डेट्स को, अपने बैलेंस शीट में डेट्स को कम रखना है. सो ये 3 जो ये एंड आई एम श्योर कि जो भी आज के डेट में कंपनीज हैं या जो भी प्रमोटर्स हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में फॉलो करते हैं. या तो आपको डेटर से रिस्क होता है या आपका कैश फ्लो का सिचुएशन का इशू है और नहीं तो तीसरा सिचुएशन है जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो भाई ऑब्वियसली मुझे अपना टर्नओवर इंक्रीज करना है और डेट्स को कंट्रोल में रखना है. तो उस सिचुएशन में भी आपको फैक्टरिंग हेल्प करता है. एक हमारा प्रोडक्ट है जिसमें आपके बिहाफ पे आपके वेंडर को हम पेमेंट करते हैं और आप मुझे पेमेंट करते हो 90 दिन के बाद. तो फॉर एग्जांपल 90 डेज़ के लिए मैंने एक्स कंपनी को 3 करोड़ का लिमिट दे दिया है. अब वो 90 डेज़ की रिवॉल्विंग लिमिट है, बेसिकली साल भर के लिए वो 12 करोड़ की लिमिट है. एंड विद इन 90 डेज यू कैन यूटिलाइज दोज एंटायर 3 करोड़ लिमिट. जहाँ पे कि आज के डेट में मान लीजिए आप किसी अपने डीलर से किसी भी डीलर स्टील खरीदना है आपको या कोई और मेटल खरीदना है, वो कॉपर लेना है, वो खरीदा आपने, उसका इनवॉइस आपके वेंडर ने आपको रेज किया है डीलर ने और वो इनवॉइस आपको मेरे पोर्टल पे अपलोड करना है. और मेरी जो डोमेस्टिक NBFC टीम है वो विद इन 3 आवर्स आपके वेंडर को पेमेंट करती है और आप अपना स्टॉक उससे नॉर्मली पिकअप करते हेडेक है वो भी खत्म हो जाता है. प्लस ऐसे मान लीजिए आपके पास 15 वेंडर्स हैं और 15 में 10 वेंडर्स आपके क्रेडिट्स के थ्रू मैनेज हो रहे हैं. सो आपका सिंगल पॉइंट बिलिंग सोल्यूशन क्रेडिट्स है, आपको कहीं और जाना ही नहीं है, कोई आपके ऑफिस नहीं आ रहा है, आपकी फाइनेंस टीम का बैंडविड्थ नहीं ले रहा है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट कलेक्शन एंड ऑल. तो वो सब प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं.
सेकेंड प्रोडक्ट जो हम देते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर इंडिया में किसी रेटेड कंपनी को सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल रिलायंस को बेच रहे हैं, टाटा इंडिया को बेच रहे हैं, या मल्टीपल अदर रिटेलर्स आते हैं, विशाल मेगा मार्ट, तो इनके लिए हम सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग का प्रोग्राम है हमारा, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट में जैसे कि हम फैक्टरिंग करते हैं। तो सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग में हम आपको 90% अमाउंट इनवॉइस का फंड करते हैं IR में, ऑब्वियसली थ्रू माई NBFC फॉर दैट पर्टिकुलर बायर, और वंस द रीपेमेंट कम्स वो पैसा आप मेरे को रिटर्न करते हो। So this is what we offer in sales invoice discounting in NBFC. The third product is working capital loans हम देते हैं, short term loans आप मेरे से ले सकते हैं 5 CR, 2 CR, yeah, any that amount का for your business purposes. Fourth product is मेरा GIFT City में entity है, so we are the only private company in India currently in factoring space who are recognized by Reserve Bank of India and has been given license in GIFT City, Gandhinagar. तो आज के डेट में जो भी फैक्टरिंग कंपनीज हैं, देयर आर 7-8 कंपनीज इन इंडिया जो ऑपरेट कर रही हैं। ऑल द कंपनीज आर बेस्ड आउट ऑफ आइदर चाइना और जर्मनी और मिडिल ईस्ट, यहाँ की कंपनीज हैं, इनके शेयर्ड ऑफिसेज होंगे किसी वर्क स्पेस में, को वर्किंग स्पेस में, एंड इट्स अ रिस्की बिजनेस। देयर वाज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ UK जो इंडिया में काम कर रही थी, एंड दिसंबर के महीने में वो इंडिया से रातों रात गायब हो गई, और लोगों का जो बैलेंस पेमेंट था, अगर उन्होंने 80 दिया था तो 20% जो बैलेंस पेमेंट था वो भी नहीं आया, और उनके जो एम्प्लॉइज़ थे वो तो ऑब्वियसली इधर उधर चले गए। सो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जो कंपनीज बाहर की हैं, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, और ये सब सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। हमारे केस में मी एंड एक्सिम बैंक, सो एक्सिम बैंक तो गवर्नमेंट बैंक है ऑब्वियसली, बट इन प्राइवेट सेक्टर वी आर द ओनली कंपनी जिसको RBI ने रिकॉग्नाइज किया है, एंड वी हैव लाइसेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैक्टरिंग इन GIFT City, गांधीनगर। सो अभी तक हम जो भी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग करते हैं वो अपनी US और सिंगापुर एंटिटी से कर रहे हैं, बट स्लोली एंड स्टेडली वी हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग आवर बुक्स फ्रॉम आवर फॉरेन एंटिटीज टू GIFT City एंटिटी, क्योंकि जब इंडिया में गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी दे रही है एंड वी हैव द लाइसेंसेस, तो हम यहीं से ये बिजनेस कर रहे हैं। इंपोर्ट फैक्टरिंग का हमारा एक प्रोडक्ट है कि आपको अगर कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, जनरली आप लोग खरीदते होंगे मशीन्स वगैरह बाहर से मंगाते होंगे, सो इंपोर्ट फैक्टरिंग भी हम करते हैं, जहाँ पे कि हम आपको 3 से 5 साल का टाइम देते हैं, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी 6 मंथली, जैसे आप कंफर्टेबल होते हो, एंड यू कैन रीपे मी दैट अमाउंट। आपके बिहाफ पे मैं आपके सेलर को जो कि फॉरेन कंट्री में प्रेजेंट है उसको मैं पे करता हूँ आपके बिहाफ पे। This is one of the key product which we are offering. क्रेडिट्स में हमारा जो ट्रांजैक्शन फ्लो चलता है फैक्टरी में, एक बार वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आप मुझे इनवॉइस देते हैं फंड करने के लिए, और आपने जो जिसके गुड्स आपने अपने सप्लायर को, अपने बायर को शिफ्ट किए हैं, क्रेडिट्स जो है हम इनवॉइसेस को चेक करता है। इनवॉइसेस को चेक करने के बाद विदिन 24 to 48 आवर्स हम आपको वो अमाउंट फंड कर देते हैं। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी सिंगल रिक्वायरमेंट होती है कि मेरी फर्स्ट फंडिंग से पहले, आपको जो मैं फर्स्ट फंडिंग दूंगा आपकी इनवॉइस पे, उसके पहले जो मेरा फैक्टरिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेटर होता है, जिसमें आप अपने डेटर को यह इन्फॉर्म करते हैं कि फ्रॉम एक्स कट ऑफ डेट मैं क्रेडिट्स के साथ फैक्टरिंग अरेंजमेंट में जा रहा हूँ, एंड दीज आर द बैंक डिटेल्स which will be mentioned in my invoices going ahead, and you need to pay all the payments as per the assignment clause mentioned in the invoice. Buyer को एक one time okay देना होता है उस event पे, which is a comfort for us कि buyer is ready to pay in the factoring company's account. Once that is done, we can fund you immediately, and this is a one time process, not every time process. तो जब भी हम कोई भी buyer फंड करते हैं तो हम ये एक confirmation लेते हैं सप्लायर, मतलब यू विल सेंड अ ईमेल टू योर बायर कीपिंग अस इन कॉपी। और बाहर क्योंकि फैक्टरिंग का जो प्रोडक्ट है वो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले इवन एज ए इंडिविजुअल और एज अ बिजनेस हाउस, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे सबसे पहले याद आता है कि ट्रेडिशनल फंडिंग के चैनल्स क्या हैं, और मैं वहीं जाता हूँ। रादर अगर मैं फॉरेन कंट्रीज में बात करूँ तो वहाँ पे हॉस्पिटल के बिल्स का भी फैक्टरिंग होता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ the penetration of factoring companies in foreign countries. Even स्कूल के बिल्स फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी फैक्टरिंग होता है। So this is the way
they are operating. So it's a very popular product there. So आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो TJX, Ross, ये सब जो काफ़ी प्रोमिनेंट बायर्स हैं, 5 Below, ये सारे बायर्स के लिए हम लोग फैक्टरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं. एंड देयर आर मेनी अदर बायर्स विच आई माइट मिस. मैं इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. सो अगर मैं छोटा सा लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, आई एम श्योर TJX बायर से सब लोग अवेयर होंगे. तो TJX के आज की डेट में क्रेडिट्स के पास मोर देन 70 सप्लायर्स हैं अक्रॉस इंडिया. सो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस यूनिट इन माई कंपनी. एंड सिमिलरली रॉस की अगर बात करूँ तो अगेन इट्स अ लार्ज रिटेलर ऑफ US एंड वी हैव मोर देन 40 odd suppliers. They work with a buying agent called Flatworld और एक उनका लाइसेंसिंग ऑफिस है. We have relationship in both the cases. इसके अलावा जो क्रेडिट्स बेनिफिट देता है वो भी आपको बताता हूँ. सो हम लोग बायर लेड प्रोग्राम भी रन करते हैं. उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई एम श्योर सहारनपुर के आप लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप बायर से काफ़ी वाकिफ भी होंगे. देयर इज़ अ बायर कॉल्ड कॉस्ट प्लस वर्ल्ड मार्केट डिज़ाइन एजेंसी. सो कुछ लोग मेरे ख्याल में काम भी करते होंगे यहाँ पे उस बायर के साथ. सो ये बायर का कहीं पे भी क्रेडिट इंश्योरेंस का लिमिट नहीं है. 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है. एंड लॉट ऑफ सप्लायर्स स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अस फॉर फैक्टरिंग लिमिट्स. हम मना कर देते थे बिकॉज मेरे पास इंश्योरेंस कवर नहीं होता था. हाउ वी स्टार्टेड कस्टमाइजिंग दिस एंड अब हम उसकी फैक्टरिंग भी करने वाले हैं. सो वी कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर बायर थ्रू माई US टीम. जो मेरे US में काउंटर पार्ट्स हैं उनके थ्रू हमने बायर को रीच आउट किया. इनफैक्ट टुडे मॉर्निंग ओनली while I was traveling from Noida to Saharanpur, I was having a meeting with the CFO of Cost Plus along with my business head. My business head is in US currently. So उनके साथ ही मीटिंग हो रही थी and they had shared their financials and whatever things we require. और हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं US में उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम वहाँ पे लिमिट्स लेके आ रहे हैं for $10 to $12 million so that हम उस पर्टिकुलर बायर के इंडिया में सप्लायर्स को फंड कर पाएँ. और वहाँ पे जो हमें हेल्प किया वो ड्राइवर ने हेल्प किया. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट जहाँ पे हम काम करते हैं कि किसी बायर पे अगर लिमिट नहीं है तो वो मैं कस्टमाइज भी करता हूँ. बिकॉज मेरे जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, उनमें से काफ़ी सारे सप्लायर्स ये बायर को प्रोडक्ट बेच रहे थे. एवरीबडी हैड अ क्वेरी के निशान, कैन योर कंपनी हेल्प मी इन दिस पर्टिकुलर केस. तो हमारा रिलेशनशिप शायद और स्ट्रांग हो जाएगा. एंड वी ऑलवेज प्रेफर कि हम एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पार्टनर की तरह अपने पार्टनर के साथ काम करें, फैक्ट्रीज के साथ काम करें. इसलिए हम लोग इस तरह के सॉल्यूशंस भी देते हैं. फर्दर काफ़ी सारे ऐसे भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो डायरेक्टली बायर के साथ, बायर से PO नहीं आता है. आपको कई सारे केसेस होंगे जहाँ पे बायर X होगा लेकिन PO शायद कोई हांगकॉन्ग की कंपनी रही होगी या कोई इंडियन कंपनी का US एंटिटी होगा, वो देता होगा PO. पैसा भी बाइंग एजेंसी से ही आ रहा होगा लेकिन आप देख रहे हो उस केस में भी एंड बायर के पास ही शिपमेंट जा रही है. और ऐसे केसेस में सेलर को इशू रहता है कि मेरा जो ये ट्रांजैक्शन है बिल टू शिप टू मॉडल है, ये सिक्योर नहीं है. एंड एक्चुअली दिस इज नॉट अ वेरी सिक्योर मॉडल. सो यहाँ पे भी हमने कस्टमाइज किया. सो प्योर जो सिंपल वेनिला मॉडल होता है फैक्टरिंग का कि आप एक बड़े बायर को बेच रहे हो, मैंने इंश्योरेंस ले लिया उस पर और मैंने फाइनेंस कर दिया. दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट टू वर्क. और इसके लिए ऑलरेडी और भी 7-8 कंपनीज हैं. आई हैव टू क्रिएट माई ओन USP अपार्ट फ्रॉम दिस सिंपल मॉडल एंड दैट इज़ वाई पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस. सो हमने इंडिया में जो काफ़ी लीडिंग बाइंग हाउसेज हैं इन अपैरल कैटेगरी या फिर इन द हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी, उनके साथ प्रॉपर टाइप करना शुरू कर दिया है एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल. जहाँ पे क्योंकि बाइंग हाउस ही पेमेंट कर रहा है तो फैक्ट्री के लिए बाहर बाइंग हाउस ही और फैक्ट्री में मुझे और फैक्ट्री को पैसा भी लेना है उस इनवॉइस के अगेंस्ट में. तो मैं ये बाइंग हाउसेस के साथ टाइप करके उनका BG या CG लेके उनको एज अ बायर अपने सिस्टम में क्रिएट करके तब मैं बिजनेस को करना हूँ. एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द इंडियन सप्लायर्स. तो अभी हम ऑलरेडी देयर इज अ बाइंग हाउस इन गुड़गांव, वेरी ओल्ड बाइंग हाउस, काफ़ी लोग अवेयर होंगे. इम्पल्स के है एक बाइंग हाउस, दैट इज वन ऑफ द टॉप 3 लीडिंग बाइंग हाउसेज इन अपैरल कैटेगरी. तो इम्पल्स के साथ हम ऑलरेडी ये पार्टनरशिप में हैं. ड्राइवर के साथ वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू सच काइंड ऑफ पार्टनरशिप. तो ये 2 बाइंग हाउसेज के साथ हमारा ये मॉडल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर स्केलिंग दिस मॉडल एज वेल. सो कोई बायर इस पर क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है आपको ECGC से या कोई और फैक्टरिंग कंपनी नहीं दे रही है. सो क्रेडिट्स के पास पॉसिबिलिटी है कि
हम 80% केसेस में वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व करके देंगे। प्लस कलेक्शन की फैसिलिटी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको पैसा दे दूँगा और फिर मैं भूल जाऊँगा। सो अगर मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, तो आपके वो डेटर से आपका पेमेंट पूरा है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। सो फॉर एग्जाम्पल $100 की इनवॉइस थी, $90 मैंने फंड किया था, तो टेक्निकली बायर से $100 आना चाहिए ड्यू डेट को। अभी बायर ने $70 दिए हैं एंड सप्लायर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिडक्शन। हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो जो मेरा इंश्योरर है बेसिकली वो उसी ज्योग्राफी में प्रेजेंट है, यूएस का अगर बायर है तो यूएस का ही मेरा इंश्योरर है। वी हैव दैट MOU विद माई इंश्योरर कि जब भी इस तरह का केस आएगा आपके यहाँ से एक सर्वेयर जाएगा उस प्रोडक्ट का सर्वे करने के लिए। एंड वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स। एक हमारे फूड कैटेगरी के एक्सपोर्टर हैं, काफ़ी बड़े बैंगलोर में एक स्टार्टअप है खनाल फूड्स, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, काफ़ी फंड रेज भी वगैरह भी किया उन्होंने। सो वो पेडिग्री को माल बेचते थे यूके में। पेडिग्री का लार्ज बायर इन डॉग फूड कैटेगरी, और पेडिग्री ने एक बार उनको $1 लाख का डिडक्शन दिया था 2.5 लाख की शिपमेंट को, एंड दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। हमने सर्वेयर भेजा था एंड फाइनली जो पेडिग्री ने बोला था कि क्वालिटी इशू है, वो क्वालिटी इशू सिर्फ $20,000 के माल में था। $80,000 दे फाइनली पेड अस बैक। सो दिस इज द लेवल विद व्हिच अ फैक्टरिंग कंपनी वर्क्स, बिकॉज अगर बायर जानबूझ के बदमाशी करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में मेरा जो इंश्योरर है दैट इज टिपिकली अ बैंक इन दैट ज्योग्राफी। सो फर्स्ट स्टेप अगर जो हम करते हैं वो ये रहता है कि बायर कैन गेट अ D रेटिंग इन देयर ओन ज्योग्राफी, क्रेडिट रेटिंग के टर्म्स में अगर मैं बताऊँ। सो नो बायर वांट्स कि उसके साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो उसकी ज्योग्राफी है, बिकॉज फर्दर फिर वो लैंड नहीं कर पाता है। एंड दिस इज द एक्सट्रीम स्टेप विच वी टेक जब हमें दिख जाता है या सप्लायर को पता चल जाता है, सप्लायर गिव्स अस अ कंसेंट, यस निशांत आप अपने कलेक्शन एक्टिविटीज़ में आगे बढ़िए। सो दीज ऑल थिंग्स वी डू, प्लस वी हैव अ वेरी good relationship, strong bond with lot of leading government organizations, lot of leading associations like EPCH, FIO, Federation of Indian Handicraft, Federation of Indian Export Organization या EPC and multiple other bodies. तो हम वहाँ पे भी उनको इन्फॉर्म करके we try to blacklist that particular buyer. We operate in Bangladesh and Sri Lanka also. तो वहाँ की भी associations को हम इन्फॉर्म करते हैं so that वो buyer at least इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली ज्योग्राफी से प्रोक्योरमेंट ना कर पाए। सो दीज ऑल थिंग्स वी डू एंड दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट विद द सप्लायर ऑल्सो कि हाँ सप्लायर को ये मालूम है कि हाँ ये मेरे साथ खड़ा है, ये सब मुझे पैसा देके साइड नहीं हो गया। तो दिस इज हाउ वी आर ऑपरेटिंग एंड दैट्स द रीजन। अगर आप बात करें हर कैटेगरी में, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट की बात करूँ या अपरेल की बात करूँ या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या टायर इंडस्ट्री की बात करिए, वायर्स एंड केबल्स, हर कैटेगरी की जो लीडिंग कंपनीज हैं वो आज के डेट में क्रेडिट्स के साथ काम करें। एंड द रीजंस आर वेरी क्लियर। फर्स्ट थिंग इज वी आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्ट फैक्टरिंग ऑल्सो एंड इन द डोमेस्टिक साइड। प्लस हम जो कलेक्शन की फैसिलिटी देते हैं, प्लस हमारी सर्विसेज, ये सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, कोई भी फैक्टरिंग कंपनी 95% फंडिंग नहीं करती। हम दिस ईयर अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग 95% फाइनेंसिंग अगेंस्ट इनवॉइस वैल्यू फॉर ए रेटेड बायर्स, जहाँ पे मेरे को 2-3 ट्रांजैक्शन का आपके इनवॉइसेस का 2-3 ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गया है विदाउट एनी डिडक्शंस। तो वी आर स्टार्टिंग विद 95% डिस्काउंटिंग ऑल्सो। सो ये दिस विल बी अ रियल बिग गेम चेंजर, बिकॉज 95% देने के बाद सिर्फ आपका 5% ही स्टेक पे रहता है। तो वो जो रिस्क वाला पार्ट है, या मान लीजिए आपने बिलिंग करते करते ऑलमोस्ट $4-5 लाख का माल बेच दिया है और 90% वाले केस में आपका $50,000 चार्जेस लेते हैं उसके, आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ सो जो आपका जो पार्ट ब्लॉक रहता है 10% वाला कैपिटल, वो कैपिटल अब रिड्यूस होकर 5% ही रह जाता है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ 1% अ मंथ एंड 12% एनुअली, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, देयर इज नो अदर कॉस्ट बियॉन्ड दिस, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर ए रेटेड अच्छे बायर्स हैं तो ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस ऑन द प्राइसिंग पार्ट, एंड अगर थोड़े से मीडियोकर या पुअर डेटर हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट क्वालिटी एंड ऑल, तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइसिंग हो सकता है, कैन बी 1.1% और 1.15%।
बट ये कॉस्टिंग रहता है ओवरऑल एंड सिमिलर कॉस्टिंग इज इन डोमेस्टिक साइड ऑल्सो एंड दिस इज ऑल कोलैटरल फ्री एंड विदाउट एनी रिपोर्ट्स ऑन यू. सो दिस इज द कॉस्टिंग स्ट्रक्चर. दोनों लेते हैं तो आपका पीओ आने के बाद आप मेरे को शिपमेंट शेड्यूल दे देते हो और पीओ शेयर कर देते हो. जो पीओज 60 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट वाले टैग में पीरियड में फॉल कर रहे होते हैं वो पीओज का मैं 40% आपको फंड कर देता हूँ और बैलेंस 50% आपको मैं देता हूँ वंस द शिपमेंट सेल्स. और आप मेरे को बिल ऑफ लीडिंग या FCR का कॉपी शेयर कर देते हैं तो मैं आपको बैलेंस कर देता हूँ. देन हम आपको वो 10% पे करते हैं जब बायर से मेरे पास पेमेंट ड्यू डेट के बाद आता है. सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स. सॉरी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू जिस दिन फंड कर रहे हैं उस दिन से लेके ड्यू डेट जो मेंशन होगी है सर उतने दिन का ब्याज ले लेता हूँ मैं. अगर पेमेंट फिर लेट आती है उसके बाद और तो मैं 10% बैलेंस 10% बाद में आएगा उसमें कोई एडजस्ट. तो पहले हम लोग सर यही करते थे, हम लोग 10% से डिडक्ट करते थे. व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस देन वी स्टार्टेड डिडक्टिंग फ्रॉम पहले लास्ट वाले 10% से ही. बट वी सॉ कि हमारा काफ़ी पैसा जो है सर ब्लॉक हो रहा था इन टर्म्स ऑफ ये पेमेंट वाले कॉस्ट. तो हमने थोड़ा चेंज किया तो हमने फिर उसको वैसे चेंज किया कि जैसे आज मेरे पास इनवॉइसेज आई हैं फंड करने के लिए तो आज की जिस दिन मैं फंड कर रहा हूँ मेरा सिर्फ जब जनरेट हो रहा है उस दिन के वैल्यू डेट से लेके इनवॉइस पे जो ड्यू डेट मेंशन है उतने दिन का ROI मैं 90% से डिडक्ट कर लेता हूँ. और बाकी अगर जब पेमेंट आती है मान लीजिए एक हफ्ता लेट आई फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट के बाद भी एक हफ्ता लेट आई है मेरे अकाउंट में फिर वो एडिशनल 1 वीक वाला मैं वो बचे हुए 10% से डिडक्ट करता हूँ. इन टर्म्स ऑफ BRC क्लियरेंस कई लोगों का क्वेश्चन होता है सर कि मेरा BRC कैसे क्लियर होगा जो लोग पहली बार फैक्टरिंग ले रहे होते हैं. सो BRC क्लियरेंस के लिए जो RBI का मास्टर सर्कुलर है एक्सपोर्ट्स का उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक्सपोर्टर को अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में जो भी पेइंग एंटिटी है उसको नोटिफाई करना मैंडेटरी है. सो सिमिलरली सिंस आई विल बी योर पेइंग एंटिटी इन केस ऑफ फैक्टरिंग एंड नॉट योर डेटर जो आपका एक्चुअल डेटर है तो उस केस में आपको अपनी शिपिंग बिल में मेरा नाम एज अ नोटिफाइड पार्टी या थर्ड पार्टी डालना होता है. और सिमिलरली मैं आपकी इनवॉइस पे भी वही जाता है कमर्शियल इनवॉइस पे मेरा नाम जाता है थर्ड पार्टी या नोटिफाइड पार्टी में. एंड BRC क्लियरेंस के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करते हैं. साथ में 2 कागज़ और लग जाते हैं. एक मेरा 90% वाला जो मैंने आपको फंडिंग किया था और जो बैलेंस 10% दिया है वो ये 2 पेमेंट एडवाइसेज और साथ में लग जाती हैं एंड यू कैन ईजिली गेट योर BRCs क्लियर. दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स. हम लोग सारा काम जो है मैनुअली कुछ भी नहीं करते. एवरीथिंग इज डिजिटल. वी हैव अ पोर्टल बोथ फॉर NBFC डोमेस्टिक पार्ट एंड फॉर एक्सपोर्ट फैक्टरी. आपके जो भी एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं आप मेरे पोर्टल में अपलोड करते हो. मेरी ऑपरेशंस टीम उसको चेक करती है एंड फंड करती है. सिस्टम पे ही आपको सारा स्टेजेस दिखता है कि आपकी इनवॉइस अपलोड हो गई है देन इट इज़ एडवांस्ड फॉर पेमेंट. जब पेमेंट आ जाती है तो आपका बैलेंस पेमेंट भी वहाँ से चला जाता है. ऑल द पेमेंट एडवाइसेज एंड एवरीथिंग आर अपलोडेड देयर. ऑल द स्विफ्ट कॉपीज आर अपलोडेड देयर. तो आप कभी भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा मंथली या क्वार्टरली अगर आपकी फाइनेंस टीम उसको रिकन्सिलेशन करना चाहती है कि मैंने सही चार्जेस काटे हैं या नहीं तो देयर इज अ लेजर रियल टाइम लेजर जो अपडेट हो जाता है वहाँ पे आप उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं. थर्ड थिंग आपके लिए इस प्रोडक्ट में कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है बिकॉज अगर मैं सिंगापुर एंटिटी से फंड कर रहा हूँ अपने तो सिंगापुर और इंडियन गवर्नमेंट का और सिंगापुर गवर्नमेंट का डुअल टैक्स ना लगे उसका पॉलिसी ऑलरेडी साइंड है एग्रीमेंट साइंड है एंड वी ऑलरेडी पे आवर टैक्सेस विद सिंगापुर एंड वी शेयर दोज डॉक्यूमेंट्स व्हेनेवर माय एक्सपोर्टर आस्क्स. तो जब भी कोई एक्सपोर्टर का CA बोलता है कि भाई मेरे को क्रेडिट्स का टैक्स वाला डॉक्यूमेंट लाके दो जो उन्होंने सिंगापुर में पे किया तो वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है. वी पे. कई जगह CA मांगता नहीं है बिकॉज दे हैव दिस अग्रीमेंट का नॉलेज ये DTA वाला सिंगापुर. सो दिस इज अ टैक्स फ्री मेरा आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है. ऑल द टैक्स ऑब्लिगेशंस आर ऑन माय एंटिटी एंड माय सिंगापुर एंटिटी बेस्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट फैक्टरी. डोमेस्टिक के केस में हम लोग NBFC हैं तो हम सारे कंप्लायंसेस इंडिया में ऑलरेडी फॉलो करते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव ऑपरेटिंग. और हम लोग द बेस्ट पार्ट इज कि ऑन द NBFC साइड अगर आप मेरे एक्सपोर्ट फैक्टरी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं एंड समवन इज आस्किंग कि निशान वी नीड योर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग ऑल्सो फ्रॉम क्रेडिट्स. आपके डोमेस्टिक से मुझे
परचेज इनवॉइस डिस्काउंटिंग का प्रोग्राम भी चाहिए मेरे वेंडर्स के पेमेंट के सॉल्यूशन के लिए, तो हम वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, और उसमें आपको फैक्ट्री लेवल पे हम एक लिमिट बना के दे देते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर मैंने मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ की लिमिट आपको दे दी है वेंडर से माल खरीदने के लिए, तो इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू ओनली वो वाला डेटर जिसके लिए मैं फैक्ट्री कर रहा हूँ। अब तो आपके पास INR में लिमिट है मेरी NBFC से, आप किसी भी डेटर के लिए कोई भी रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी। और उसमें भी सिंपल वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, उसमें भी बैंक के जैसे वही चलता रहता है। जैसे आज आपने कहीं से पैसा उठाया मेरे से और 7 डेज के बाद आप वो रीपेमेंट करना चाहते हो, यू कैन रीपे दैट और 7 डेज का ही ROI आपको लगेगा। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, एंड यू कैन यूज दिस कैपिटल एज और एडिशनल वर्किंग कैपिटल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कोलैटरल नहीं देना है। तो दिस कैन बी एडिशनल लाइन। सो वी ऑलवेज रिकमेंड एंड position ourselves as a additional financing mode for you apart from the traditional models you already have. तो जो आपके ट्रेडिशनल मॉडल्स चल रहे हैं आप उनको ऑब्वियसली चलाइए, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम ही रहेगा, बट जब आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है मेरे बायर का, मुझे ये बायर पे को सिक्योर करना है, उस केस में यू शुड टेक फैक्टरिंग, या आपको लगता है कि मुझे अपना कैश फ्लो मैनेज करना है, यू शुड टेक फैक्टरिंग, आपको लगता है कि आपको अपना ग्रुप लेवल पे डेट रिड्यूस करना है, डेट सिंडिकेशन करना है, तो किसी डेट सिंडिकेशन वाले कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एटलिस्ट के पास आ जाइएगा। हमारे नंबर यहाँ पर मेंशन है, मेरी टीम भी यहाँ प्रेजेंट है, आप हमें कॉल करेंगे तो दे विल हेल्प यू इन योर डेट सिंडिकेशन एज। तो वो सारे सॉल्यूशंस हैं एंड लॉट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड टू आवर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स आल्सो। कोई अगर आता है मेरे पास कोई कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन लेके तो हम वो भी कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर। मैंने आपको मोब्लिक्स के बारे में भी बता दिया है, जो मेरी पेरेंट कंपनी है, जहाँ पे हम लोग आपकी फैक्ट्री में मशीनरी के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप moblix.com से परचेज कर सकते हो। सर मशीनरी वी डोंट सेल, एक्चुअली बहुत निश सेगमेंट है, पैसा देते हैं सर। हाँ, तो रॉ मटेरियल मैं दे सकता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, हाँ। सो वी हैव वेंडर्स फॉर दैट। हाँ सर, मतलब मेरा अपना नहीं है, मेरे पास पूल ऑफ वेंडर्स हैं जो ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। आपको मेरी टीम जो है सैंपल्स दिखा सकती है, आप वो देख सकते हो। और अगर आपको वो सैंपल्स पसंद नहीं आते हैं तो आप जिससे वो एक्चुअली वो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, हम लोग हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल तो वो है ना, एक्चुअली FSC सर्टिफाइड वुड की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया सर, आपका जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे मेंशन करा दीजिएगा, आई विल गेट दैट, हम अवेलेबल करा के देंगे वो। नहीं सर, टिपिकल रॉ मटेरियल वाला ट्रेड नहीं, आई एम अ फाइनेंसिंग गाय। नहीं मैं समझ गया सर, बट सिंसियर अपॉलजीज, आई बीइंग अ फाइनेंसिंग गाय, वो मुझे ट्रेड का पूरा नॉलेज नहीं है वो वाला कि रॉ मटेरियल एग्जैक्टली क्या प्रोक्योर होता है। फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, सर कॉमर्स वाला बंदा होता तो मैं जरूर आपको वो वाला पर्टिकुलर आपके लिस्ट में FSC सर्टिफाइड वाले हैं? नहीं सर, मैं शाकिब, मैं आई थिंक क्वेश्चन इज ऑलरेडी कवर्ड। सो आपने DRC वाला पॉइंट होगा, आई डोंट नो वेदर दैट इज टेक्निकल यू विल आंसर और जितने एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो एक्सपोर्टर्स आपसे पैसा लेते हैं तो एक पेमेंट 90% पेमेंट आएगा आपके अकाउंट से, 10% पेमेंट आएगा फ्रॉम द हु इज बाइंग फ्रॉम एक्सपोर्टर को सारा पैसा मुझसे ही है। ठीक है, ओके, चलो तो सारा पेमेंट आपके पास आएगा। तो DRC में जो नाम आएगा वो किसका आएगा? DRC अगर कोई करता है तो उसमें IRM जो बैंक पेमेंट करता है, उसके बाद DRC की डिटेल होती है, तो उसमें जो पेमेंट दिखा रहा है, जिससे पेमेंट आया है, उस पार्टी के नाम में आपका नाम आएगा या उस पार्टी का नाम आएगा? मेरा नाम। अब ये इम्पैक्ट मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं, कई जगह मैंने जो मेरे बैंक का नाम भी आता है। मैं ये सबके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं IM और GST रिफंड, क्योंकि जब ये सब लोग रिफंड लेने जाएंगे तो सरकारी डिपार्टमेंट को ये
ये फैक्ट्री नहीं समझ में आती है, वो लकीर का फकीर आदमी है, उसको वो चाहिए जिससे पेमेंट आई है और जिसको आपने एक्सपोर्ट किया उसी से पेमेंट आनी चाहिए, क्योंकि उसको नहीं आती है तो देर आर मल्टीपल केस लॉस जिससे पेमेंट किससे भी आ जाए तो मिल जाए। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं अगर आपके पास आंसर नहीं है या कोई एस्पेक्ट है तो इस एस्पेक्ट को आप अपना मॉडिफाई करें, क्योंकि जब ये लोग आज को पेमेंट लेके चले जाएंगे और जब ये सरकार के पास जाएंगे रिफंड देते तो वहां पर हमसे प्रॉब्लम आएगी सर ये लोग डीआरसी है तो डीआरसी पार्टी। इसको मैं आंसर करता हूँ आपको, क्लियर कर दो। एक्चुअली जीएसटी पहले बैंक डीआरसी जो रिलीज करेगा ना वो शिपिंग में से मैच करेगा। अगर शिपिंग में ऑलरेडी कॉर्पोरेट करा दिया इन्होंने तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो भी जिससे पेमेंट आनी है इनकी पहले इनसे लेके अंडरस्टैंडिंग वहाँ शिपिंग बिल में कॉर्पोरेट कराना होगा, वो बैंक को देनी होगी कॉपी, बैंक उससे मैच करेगा तो बैंक रिलीज कर देगा, बैंक रिलीज कर देगा केस पेमेंट हो जाएगा। लेकिन बैंक Yes, that's let him answer. So the most important part is कि शिपिंग बिल में नाम होना चाहिए। There are scenarios जब एक्सपोर्टर शिपिंग बिल में नाम मेंशन नहीं करता है, उस केस में तो बैंक भी पैसा करंट अकाउंट में डालने से पहले क्वेरी करता है। सबसे पहला तो ये आता है, वो करंट अकाउंट में पैसा ही नहीं डालता, वो पहले क्वेरी करता है कि आपका ये पैसा आया है एक्स डेटर का वाई नाम की कंपनी से और ये वाई कंपनी आपकी शिपिंग बिल में नाम मुझे लिख रही है, तो ये क्या है। उस केस में एक्सपोर्टर क्या करते हैं, वो मेरा जो फैक्टरिंग एग्रीमेंट है वो शेयर करते हैं, मल्टीपल आंसर्स देते हैं और उसके बाद वो पैसा उनके पास आता है एंड देन दे रियलाइज कि क्रेडिट्स में जो मुझे पहले दिन बताया था कि शिपिंग बिल में नाम डालना है मेरा वो सही था, देन दे स्टार्ट नहीं गई। बट 90% केसेस में एक्सपोर्टर आज के डेट में अवेयर है, क्योंकि जीएसटी आज का प्रोडक्ट नहीं है, इट्स एन ओल्ड प्रोडक्ट नाउ एंड पीपल नो कि मेरा जो रेमिटेंस आ रहा है एंड इफ इट इज अ फॉरेन रेमिटेंस तो मुझे वो पार्टी का नाम नोटिफाई करना मैंडेटरी है। तो जीएसटी वाला केस तो बहुत बाद में आएगा, सबसे पहले करंट अकाउंट में पैसा ही नहीं सेटल होता है, तो ये चीज़ है। और डीआरसी और ये जो आपने बताया जीएसटी वाला तो बेसिकली सर्वे जो होता है वो बैंक भी शिपिंग बिल से मैच करता है ना। EDPMS सिस्टम जो आप बता रहे हैं, मैं इसलिए वाली बात बोल रहा हूँ क्योंकि जितना जो फैसिलिटी लेता है उसको आज पता है मुझे फैसिलिटी लेती है और ये फैसिलिटी का ज्ञान यहाँ पे शिपिंग बिल के बाद वो या शिपिंग बिल से पहले हो। तो एज अ पॉइंट व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक द एवरीवन अंडरस्टैंड इज कि शिपिंग बिल से पहले होगा तो आपकी दिक्कतें कम होंगी और शिपिंग बिल के बाद होगा तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि पेमेंट तो मैं दे दूंगा बट वो पेमेंट आपके अकाउंट में EDPMS सिस्टम इनकाउंटर नहीं करेगा। दैट्स द आंसर। Exactly. So this is it from my side. Any other questions? If it's there, happy to answer that. 40 और 50% पेमेंट आने के बाद रिमेनिंग 10% क्या ये रिस्क मैनेजमेंट आपका? हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें रिस्क भी चला जाता है। हाँ, मैं एक पॉइंट मिस कर गया एक्चुअली, थैंक यू आपने ये नोटिफाई किया। तो ये भी एक हमारा यूएसपी है। सो जितनी भी फैक्टरिंग कंपनी के साथ आप काम करोगे एवरीबडी विल से मेरी कंपनी ये बोलती है कि अगर आपका एक डेटर है जिसके बाद आपने क्रेडिट्स का बैंक अकाउंट अपडेट करा दिया है और आपको साल में 5 महीना ही फैक्टरिंग लेनी है, 7 महीने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम ओके रहती है, धंधा भी थोड़ा सा कम रहता है, वो डेटर के साथ आपको फैक्टरिंग नहीं चाहिए। तो हमने अपने पोर्टल में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं सर। जब इनवॉइस अपलोड होती है तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फैक्टर्ड कैटेगरी डाला हुआ है, एक नॉन फैक्टर्ड। तो जब पैसा मुझसे आपको चाहिए आप 90% अपफ्रंट BL के अगेंस्ट, तो आप फैक्टर्ड सिलेक्ट करके और इनवॉइस को अपलोड करके और मैं पैसा दे देता हूँ। जब आप नॉन फैक्टर्ड सिलेक्ट करके अपलोड करते हैं तो मैं पैसा नहीं देता हूँ आपको स्टार्टिंग में। जब बायर से पेमेंट आती है तो वो मैं वैसे ही रूट कर देता हूँ। लेकिन ये दोनों सिनेरियोज में जो आपका एंटायर टर्नओवर है फैक्टर्ड इनवॉइस का और नॉन फैक्टर्ड इनवॉइस का, मतलब वो डेटर के साथ आपने जितना भी धंधा किया साल भर, वो पूरे 1 साल तक मेरे क्रेडिट्स में मेरे इंश्योरेंस कवर में कवर्ड है 100% बिजनेस। मैं पैसा तो आपको 90% दे रहा हूँ लेकिन आपकी 100% इनवॉइस वैल्यू कवर है। 10% जो रिस्क कवर है वो बाय डिफॉल्ट होने की कंडीशन। हाँ, वो 10% सर होल्ड करने का रीज़न क्या है वो बताता हूँ आपको। वो 10% मैं देखिए एज अ फैक्टरिंग कंपनी अगर मुझे आज बायर ने लिख के दे दिया है, अपना अंडरटेकिंग गारंटी भी दे दिया है साथ में कि मैं ये डेटर का $1 नहीं काटने वाला हूँ 60 दिन के बाद, और कुछ
लिख के दे दिया अंडरटेकिंग में, कुछ गारंटीज दे दी है कि अगर मैंने काटा तो तुम मेरे से ले लेना, इस तरह से लिख के दे, तो मैं तो $100 का $100 देने के लिए तैयार हूँ अपना डिस्काउंटिंग चार्ज काट के, मेरा भी टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 10% मैं होल्ड क्यों करता हूँ? वी आर रनिंग अ सप्लायर लेड फैक्टरिंग प्रोग्राम। यहाँ मेरे जो बायर है उसके साथ मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ मेरा रिलेशनशिप क्रेडिट्स का सिर्फ सप्लायर के साथ है। तो कल को अगर कोई छोटा मोटा पेमेंट कर गया, कोई जैसे अभी टैरिफ का इशू चल रहा है सर, कई बायर्स क्लियर ही नहीं है, उनको 10% काटना है इनवॉइस में से या कितना एडजस्ट करना है। इवन वी आर कंफ्यूज कि क्या होगा, सप्लायर को भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता रहेगा। तो वो केसेस, वो सारे सिनेरियोज के लिए ना हम ये 10% होल्ड पे रखते हैं कि जब बायर से पेमेंट आ जाएगी तो हम आपको ये 10% रिलीज करेंगे, और उसी को बढ़ा के हम 95 करने वाले हैं अपने जो पुराने एक्सपोर्टर्स हैं जिनके साथ मेरा ऑलरेडी 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है। तब तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो टैरिफ वाली सिचुएशन है ये भी बराबर हो जाएगी, यहाँ की जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर आउट हो जाएंगे, लोगों की रिपेमेंट्स आ चुकी होंगी। तो अक्टूबर स्टार्ट हमें अप्रैल से ही करना था, लेकिन ड्यू टू मिस्टर ट्रम्प्स ब्लेसिंग्स हमको नहीं कर पाए। अब वी आर फोकस्ड ऑन स्टार्टिंग दिस 95% वाला प्रोडक्ट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और आप देंगे 100% हमको पे करके आपके पास बायर से जी, उसके बाद में अगर वो क्वालिटी इशू फेस करते हैं पुरानी इनवॉइस पे इसी इन्वायरमेंट में जिसका आपने 100% हमको पे ठीक है। तो हाँ, तो बताता हूँ। तो सर देखिए वही से अभी बायर अगर आपको इस तरह का कोई कम्युनिकेशन कर रहा है कि भाई मैं डेबिट नोट दे रहा हूँ 10% का और ये मैं सेटल करूँगा आगे वाली इनवॉइस पे, तो अब यहाँ पे देखिए मैं बायर सेलर रिलेशनशिप के बीच में नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर को अग्री होना है कि अगर वो सेलर रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ठीक है 10% का डिस्काउंट मैं देने के लिए तैयार हूँ आगे, तो उस केस में क्या है सेलर मुझे इन्फॉर्म कर देता है कि निशान मेरी आगे वाली जो इन्वॉइसेज हैं उसमें ये 5-5% करके 2 बार डिडक्शन आएंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि बायर और सेलर, बायर बोलता है कि मैं डिस्काउंट काटूंगा, सेलर अग्री नहीं होता है, धंधा चल रहा होता है, सेलर ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता है कि ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा है हमारे बीच और इनवॉइस में डिडक्शन होके आ जाता है। अभी रिसेंटली 2-3 केसेस हमारे ऐसे चल रहे तो वो केसेस में हम सप्लायर से पूछते हैं कि सर देखो पेमेंट तो पूरा आ गया था, अभी वो डिडक्शन मांग रहा है, ये रीज़न है। अगर आपको लगता है कि आपको ये डिडक्शन नहीं देना है, आपके प्रोडक्ट्स ठीक थे, तो आप मुझे इन्फॉर्म बता दीजिए, मैं अपने इंश्योरेंस को बोल के एक बार वो प्रोडक्ट्स का वापस से ऑडिट करवा देता हूँ। हमने 2-3 बार ये काम करवाने की कोशिश भी करी है सर पास्ट में। हमारे एक जोधपुर के सप्लायर थे उनके लिए किया, मुरादाबाद के एक सप्लायर थे उनके लिए किया। व्हाट वी फाउंड ऐसे केसेस में बायर जनरली ब्लफ कर रहा होता है बिकॉज 70% माल बिक चुका है। जब वो सर्वेयर चेक करने गया सर वहाँ पे, तो वो माल वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो उनके मतलब रिटेल स्टोर्स हैं वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँच चुका है और बायर यहाँ पे ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। तो वी हैव सीन दिस सिनेरियो। 100% कमीशन के बाद सर देखिए, अगर जनरली जो भी माल इंडिया से जा रहा है और मैं पैसा दे रहा हूँ, शिपमेंट अगर एफओपी है तो उसका 99.9% केसेस में इंस्पेक्शन होके ही जाता है। वो बिना इंस्पेक्शन हुए तो कोई सरकार माल भेजता ही नहीं है, तो वो QC हो चुका है। लेकिन आपने देखा होगा, आप लोग तो सर काफ़ी सीनियर हैं, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी अपने टेन्योर में कि बायर डिडक्ट करता है क्वालिटी बोल के, करेक्ट। तो वो केसेस में हम यही बोलते हैं कि अगर सेलर रेडी है एक्सेप्ट करने को, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो वो पैसा एक्सेप्ट करूँगा। नहीं तो मेरा काम है सबसे पहले ये इन्फॉर्म करना है कि आपकी $100 की इनवॉइस की $90 मैंने फंड किया था, रेमिटेंस रिसीव हुआ है $65, मैं इसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं। मतलब जब भी शॉर्ट पेमेंट आती है, मेरी ऑपरेशन टीम का काम है ये सेलर से पूछना कि सर ये मेजर डिडक्शन आया है इतना ज़्यादा, ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं। क्योंकि ये अपना बैंकिंग में भी सर RBI का भी रूल है, वो 75% से नीचे जब पेमेंट आती है तो वो क्वेश्चन उठते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो वी वर्क एज अ रिकवरी एजेंट ऑल्सो फॉर यू। तो ये हमारा एक काम सर। देखिए अभी तो क्या है, मतलब हमारे पोर्टफोलियो में वी आर वर्किंग विद मोर देन 1400 बायर। 1400 बायर ऐसे हैं अक्रॉस कैटेगरी जहाँ हम पैसा दे रहे हैं। और ये 1400 में अगर मैं बात करूँ तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के मेरे पास ज़्यादा एक्सपोर्टर है सर, टू बी वेरी फ्रैंक।
स्टार्टिंग हमने वहीं से किया था। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कस्टमर्स उसी कैटेगरी के हैं, तो नॉर्थ इंडिया जो ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी मेरे ज़्यादातर बायर्स हैं 60-70% हम इवेलुएट कर चुके हैं। जब आप मुझे डेटर का नाम बताओगे तो सबसे पहले मैं स्टेप क्या होता है फैक्टरिंग में मेरे साथ, आप मुझे बायर का नाम और एड्रेस बता देते हैं और बता देते हैं निशान 60 डेज में 90 डेज पेमेंट टर्म है मेरा, तो मेरा काम है पहले जाके इंश्योरेंस का कवर लेना। जब मेरे पास इंश्योरेंस कवर मिल जाता है तो मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ फैक्टरिंग, और ये भी मैं बता दूंगा कि ये बायर फैक्टरिंग लेता है या आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बता दूंगा ये बायर फैक्टरिंग लेता है नहीं। तो अगर मैंने मुझे पता है कि वो फैक्टरिंग लेता है तो मैं आप तभी मैं इवैल्यूएट करूँगा सर, और तभी फिर जब आपके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं वो लेटर आपको। मतलब ये है ना कि बिफोर प्रोसीडिंग विद द ऑर्डर्स हमें आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि आपके पास बायर अप्रूव्ड है या नहीं जी है। बिल्कुल। इसके अलावा सबसे अच्छा बेनिफिट, आप मेरे साथ काम करिए या मत करिए, एक मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जिसके लिए बहुत सारे लोग चार्जेस लेते हैं। आप मुझसे बायर का क्रेडिट वर्थिनेस चेक करा सकते हैं। हमारे पास एक नया कस्टमर आया, हाँ जी, उससे बिफोर ऑर्डर लेने के हमें पहले आपसे बिल्कुल आप लेना पड़ेगा। इनफैक्ट आप अपनी मार्केटिंग टीम्स को आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी फेयर में जा रहा है, किसी बायर से मिल रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल 10 प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जिसमें से आपको लग रहा है कि ये 5 के साथ मुझे बिजनेस करना चाहिए, आप वो 5 को उनके डिटेल्स कीजिए, नाम एड्रेस और पेमेंट का लगभग क्या रहेगा, वो ये 3 चीज़ आप बता दोगे तो मैं आपको विद इन 3 to 4 डेज बता दूंगा कि ये बायर के साथ आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। और 4 डेज में तो बहुत फेयर भी खत्म हो जाता है। नहीं सर, उसको फिर 4 डेज में चला जाएगा। 4 डेज वो केसेस में लूंगा जहाँ पे बायर मेरे लिए भी नया है, मतलब मेरे वो 1200-1300 नाम के बाहर। अच्छा, ऐसे बहुत कम नाम होंगे सर, बिकॉज मैंने बताया आपको सब वर्लिंगटन हो गया, 5 किलो, या मेरा मल्टीपल अदर बायर बहुत सारे नाम हैं जो छोटी छोटी शिपमेंट भी खरीदते हैं, ब्रूस्टर होम राजनगर, काफ़ी सारी इम्पोर्टर्स भी हैं, आरडीएन हुआ है, तो बहुत लिस्ट है। हाँ, मतलब मेरा कहना मतलब है उसके लिए पहले अप्रूवल जरूरी है। हाँ, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि सर ये बायर के साथ आप काम कर सकते हो। बेसिक चेक मैं आपको तुरंत करके बता दूंगा। बेसिक चेक करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मैं वही देख लूंगा कि भाई ये बायर का रेवेन्यू कितना था लास्ट ईयर, इसने कितना शिपमेंट ग्लोबली इंपोर्ट किया और कितने सप्लायर हैं इसके ग्लोबली और इंडिया में कितने। एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको तुरंत दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ। मतलब आप अगर बोलोगे तो मेरी टीम है। मेरा क्वेश्चन था कि जब हम आपके पास आते हैं फाइनेंसिंग के लिए तो आप हमें क्रेडिट लिमिट्स में इवेल्युएट करेंगे कि हम आपको $1 लाख की या $2 लाख की लिमिट दे सकते हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे। नहीं, तो मैं बताता हूँ ये वाला काम जो आप बता रहे हो ना, ये काम मैं इंडिया में जब एपीएससी से पैसा दूंगा ना आपको तब करूँगा। नहीं, फॉरेन बायर वो शिपमेंट में मैं आपकी बुक्स पे उतना मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि मैं वो शिपमेंट कर रहा हूँ सर, तो वहाँ पे मैं बायर का ज़्यादा चेक करता हूँ। मतलब स्कोरिंग अगर देखोगे आप तो 80% बायर का क्रेडिट वर्थिनेस वो फाइनेंसिंग का बायर की स्कोरिंग पे करेंगे, बायर की स्कोरिंग पे करते हैं। थोड़ा बहुत आपका हमारी स्कोरिंग पे नहीं, थोड़ा बहुत आपका देखिए जैसे आपके बैलेंस शीट और लेजर वगैरह में दूंगा बस नहीं। ये देखिए तो ये मतलब वो शिपमेंट में बायर स्पेसिफिक अप्रोच रहता है मेरा। एक क्वेश्चन में रहता है जैसे बायर से आपके पास अप्रूव्ड है, सेशन के बाद करते सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सेशन के बाद तो वो 60 डेज में पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, उससे पेमेंट भी 90 डेज में या 180 डेज में थोड़ा डिले हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल हो गई, तो क्या आप उस बायर को कंसिडर करेंगे फॉर दी फर्दर फाइनेंस? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बता देता हूँ। जब तक मेरा इंश्योरेंस मतलब मेरा जो यूएस वाला बैंक है या यूरोप वाला बैंक है वो बायर के फाइनेंशियल जो ऑडिट कर रहा है वो कह रहा है कि भाई ओके कोई दिक्कत तब तक करूँगा, हम आप उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी एक अच्छी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ तो मैं कल आके आपको बोलूँगा कि सर अभी तक तो पेमेंट कर रहा था कल से नहीं करूँगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप इस पर आंसर कंप्लीट कर दो। सो मेरे एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन है 60 दिन का क्लॉज है, 60 डेज का। मुझे 60 दिन पहले आपको बताना है कि मैं ये बायर के साथ 60 दिन बाद फाइनेंसिंग बंद कर दूँगा। 60 दिन का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि 60 दिन हम लोग ये समझते हैं कि सर ऑर्डर आके 60 दिन लगता है माल बनाने में। ये सर बताइए प्री शिपमेंट के लिए हमारी क्रेडिबिलिटी कैसे आवश्यक है? तो आप प्री शिपमेंट के केस में जैसे 4% आप बता रहा हूँ जब प्री शिपमेंट अगर कोई मेरे से मांगता है तो प्री शिपमेंट के केस में मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट लेता हूँ, जैसे कि लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट दूंगा, आपके जो इंडिया में लास्ट 6 मंथ के डेटर क्रेडिटर का जो रिपोर्ट है आपके टैली से वो डाउनलोड करके मांगूंगा आपसे, प्लस आपके टॉप 5 जो मतलब बहुत सारे डेटा है सर जो हम लोग लेते हैं तो वो हाँ तो मतलब प्री शिपमेंट में सर देखिए मेरे लिए बायर आप है, मतलब आप पे रिस्क लेके पैसा देगा। बायर की
तो ये बहुत नॉर्मल सिनेरियो है। जब बड़ा एग्जांपल, बहुत क्लासिक एग्जांपल एक स्पेसिफिक केस के बारे में है कि पेमेंट बाहर नहीं किया, लेकिन आपको करने की वजह मुझे करके जा रहे हैं। हाँ, मैं आपसे भी ले चुका पहले, ये हुआ है ना अभी, होता है सर। तो मैंने वो वापस किया, बताता हूँ। हाँ, वो वापस किया, बाहर ने गलती से फिर दोबारा मुझे कर दिया, मैंने फिर वापस किया, फिर उसने आपको किया। अब इस 3 ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे तकरीबन आपने $1200-1400 काटे। करेक्ट। तो ये क्या होता है ना सर, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। $1200 काटे। तो ये अभी क्या हो रहा है ना सर, देखो अगर बायर ने अगर गलती से आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया, डिस्पाइट एक्नॉलेजिंग कि वो हमें पे करेगा और डिस्पाइट हैविंग द इनवॉइस कि उसमें ये लिखा है, तो उस केस में अगर पेमेंट आपके पास आ रही है और मैं आपसे डायरेक्टली पैसा ले रहा हूँ, तो ये मेरे बुक्स में एज अ कलेक्शन लिखा जाता है और मेरा इंश्योरेंस कवर जो है उस सेलर के लिए खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम आ जाती है और बायर का भी गेटिंग पे इम्पैक्ट आता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं हमेशा सेलर को कि आप बायर को पेमेंट वापस करो और वो हमें वापस करो। 2 बार वापस किए। लेकिन ये स्टार्टिंग में हुआ होगा। हाँ, ये मतलब दीज आर सम रेयर सिनेरियोज सर। ये मतलब इट्स अ रेयर मिस और बायर सब झगड़ा भी नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा किया वैसा, बट हाँ कभी कभी ये मिस हो सकता है। दिस इज अ रेयर सिनेरियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Thank you, Nishant ji, for the detailed presentation. Now, I will request Kapil Mahani ji, co-founder MyGST Refund, for his presentation. Kapil Mahani ji is chartered accountant by profession and has a very vast experience in GST refund and litigation. Today, he will share how technology can be used to identify and guarantee GST refund. And the guys members. So आज का हमारा टॉपिक जीएसटी रिफंड है। अब जीएसटी रिफंड एक्सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दे देते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी कंपनी कौन सी है। सो हमारी कंपनी का नाम माई जीएसटी रिफंड है, जहाँ पर हमने 2017 से जब जीएसटी आया उसके बाद सब लोगों के पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट हमेशा मेरे को लोन के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। और साइमल्टेनियसली हमने ये देखा कि सबके पास जीएसटी का क्रेडिट तो पड़ा हुआ है, बट उस जीएसटी का रिफंड वो नहीं लेके एक लोन के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट है। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई कि जीएसटी रिफंड कैसे पता लगेगा किसी भी एक्सपोर्टर को, क्योंकि आज के टाइम पे जीएसटी रिफंड पता करने के लिए आपको अपने सीए या अकाउंटेंट या जो जिसके साथ भी आप फाइनेंस का काम करते हो वो अपॉर्चुनिटी आप उन्हीं से पूछ सकते हो कि मेरा जीएसटी रिफंड कितना बनेगा। आपके पास अगर आपको ये पता हो कि मेरी सेल कितनी है, बट अगर ये पूछना होगा कि मेरा जीएसटी का रिफंड कितना बनेगा, तो उसके लिए आप एक फॉर्म घुमाओगे और पूछोगे कि हाँ मेरा रिफंड कितना, और फिर उस आदमी को रिफंड बताने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो वो 2 तरीके से करता है। पहला, वो एक्सपोर्ट करता है एलयूटी की फॉर्म में और जीएसटी पे नहीं करता, और जितना भी सामान उसने पहले इंडिया में खरीदा होता है लोकल बायर से, उसके ऊपर उसने जीएसटी पे कर रखा होता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, और उसी के पास पे उसके पास जीएसटी क्रेडिट आता है। अब इस जीएसटी क्रेडिट को जीएसटी रिफंड कैसे बन सके, तो इस पे बहुत लोग सवाल पूछते थे, और वो सवाल स्पेसिफिकली क्योंकि एसएमई के पास अपनी पूरी एक फाइनेंस टीम नहीं होती थी और आज होती है, तो उसके पास ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि यार मैं 3 महीने 6 महीने या सीए मुझे बता देगा तो मैं रिफंड ले लूँगा। अब क्योंकि 2017 से 2025 हो चुका है, तो बहुत लोगों को ये पता है कि रिफंड बनेगा, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूँ या मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ऐसे किसी आदमी को दे रहा हूँ जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा? उस सिनेरियो में ये भी एक सवाल होता था। तीसरा, अगर मैं किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कोई सामान बेच रहा हूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐसे में, तो क्या मेरा वहाँ पे भी रिफंड बन सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल थे जो किसी एक बिजनेसमैन को हमेशा आते थे कि अपने रिफंड लेने के ऊपर, और रिफंड की जरूरत क्यों आती है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए जैसे आज क्रेडिट भी एक प्रॉब्लम यही सॉल्व कर रहा है एक्सपोर्टर की, कैसे वर्किंग कैपिटल बेनिफिट हो सके बाय वे ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस और बाय वे ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब उसमें जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है उसका तो बेनिफिट क्रेडिट्स
अब जो दूसरा बेनिफिट है जीएसटी का, उस बेनिफिट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आई एम कपिल महानी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड हम 2017 से 2000 बड़ी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे थे और उन सब कंपनीज को सपोर्ट करने में हमने जाना कि इन सब को तो पता है कि रिफंड अपॉर्चुनिटी क्या है, बट 2022 में हमने आइडेंटिफाई किया कि यार जब मैं मल्टीपल शहरों में जाके अपने एक सेमिनार देता हूँ तो ध्यान दे के आ जाता हूँ, पर लोग सवाल जैसे आज पूछ रहे हैं वैसे ही पूछते रहते थे कि सर ये क्रेडिट है, रिफंड मिलेगा। अब मैं उनको जवाब ही सिर्फ दे सकता हूँ कि सर रिफंड बनेगा। उस सिचुएशन में हमने 2022 में ऐसा कुछ सोचा कि किसी को मुझसे ना पूछना पड़े या मेरे जैसे किसी आदमी से ना पूछना पड़े और वो फिर उसको बोले कि हाँ आपका रिफंड बनेगा। तो हमने वैसे उस सिचुएशन में एक टेक्नोलॉजी के ऊपर दिमाग लगाया कि कैसे हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जहाँ पे बिजनेसमैन को एक चीज पता है अपनी, वो है जीएसटीएन नंबर, और उस जीएसटीएन नंबर पे उसको कोई दिमाग ना लगाना पड़े और जीएसटी नंबर डाले और उसको ये पता लग जाए कि मेरा कितना रिफंड बनता है, वो लाइव रिफंड। अब उस रिफंड को बैंक अकाउंट तक लेने के लिए अगेन उसको किसी आदमी को पैसा ना देना पड़े, ना किसी डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़े, उसको ये आंसर हो कि मुझे रिफंड जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो मुझे पैसा देना होगा। दैट इज अनदर एडवांटेज विच वी, क्यों? क्योंकि हम एक लौती इंडिया की एक कंपनी है जिसने ऐसा कुछ आविष्कार किया फॉर अ स्मॉल एंटरप्राइजेस। बिग एंटरप्राइजेस की और प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं यहाँ पे सहारनपुर पे हूँ तो मैं उन सब बातें नहीं करूँगा कि उन सब लोगों के लिए क्या हमने किया। जो एसएमई और एमएसएमई लोग हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, कुछ अब डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ये फ्लो देखेंगे तो किसी भी बिजनेसमैन को आज के तीसरा, कुछ लोग जॉब वर्कर का भी काम करते हैं। ये 3 तरीके से काम होता है। अब इन 3 तरीकों में जो सामान दिया जाता है या तो एक्सपोर्ट में बाहर किसी को दे दिया या लोकल में किसी को दे दिया या हमने कभी किसी सरकार को भी अगर कोई अपना सप्लाई किया, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। इन सब सिचुएशन में सिर्फ पहला सवाल का जवाब कि सिर्फ एक्सपोर्टर को रिफंड मिलता है, आंसर इज यस। क्या बट उसके अलावा भी लोगों को मिलता है? आंसर इज यस। अब वो कौन से लोग हैं जिनको रिफंड मिल सकता है? ये सवाल का जवाब, क्या मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो रिफंड मिलेगा? आंसर इज यस, बनेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपना माल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, रिफंड बनेगा? आंसर इज यस। अब इसमें स्पेसिफिकली हम पहला केस एक्सपोर्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में यहाँ पे कितने लोग AUT के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और कितने लोग एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं? इसका जवाब किसको पता है या नहीं पता तो भी आंसर चाहिए। सर आप बोल रहे थे आप रिफंड देते हैं, इसके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। विदाउट टैक्स देते हैं मतलब AUT, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट करता हूँ। और किसी को ये पता है कि एक्सपोर्ट में विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है? पता है सर? अच्छा सर आपका नाम क्या है? साहब आपका एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करके करते हो। सर कितनी जल्दी रिफंड आ जाता है? 25 to 40 days। 25 to 40 डेज ये चीज। और सर एक चीज ये बताइए, 25 to 40 डेज आता है तो जीएसटी की वेबसाइट या आईसीएट की वेबसाइट पे चेक करते रहते हो कि इसका पेमेंट आया नहीं आया? जरूरत नहीं पड़ती है इसमें हो जाता है। कैसे जरूरत नहीं पड़ती सर? आपको पता है कि कितना अमाउंट आ रहा, कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आ गया? मैं ये इसमें बात करके रखना, बस यही आंसर ये सुनना था आपसे। ये प्रॉब्लम है, ये इसका आंसर पूछता हूँ। सर आप भी कोई और भी आप खड़ा कर रहा था? यस। आपका क्या नाम सर? आसिफ साहब, आप एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं? कितना टाइम में आएगा सर? 25 से 30 दिन 40 दिन में। और आप भी कोई ट्रैकिंग करते हैं कि अमाउंट आया नहीं आया? आइस गेट पे ट्रैक करते हैं। थोड़ा सा अच्छा आंसर और इन्होंने दिया, आइस गेट पे। सर एक चीज बताइए, खुद ट्रैक करते हैं कोई और आदमी? सर बहुत बढ़िया। अब ये आइस गेट पे जो ट्रैक करते हैं तो एक इनवॉइस पे एक जाके बिल ऑफ शिपिंग बिल नंबर डाल के चेक करते हैं कि इसका पीएफएमएस में आया नहीं आया, है ना सर? करते हो क्या? तो अब ये इसी पॉइंट को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आपको किसी भी जगह कहीं पे भी अलग अलग विंडोज पे नहीं जाना। और अगर किसी 1% सिचुएशन में या 2% सिचुएशन में
किसी शिपिंग कंपनी ने EGM नहीं फाइल करी तो पेमेंट अटक जाता है, करेक्ट? करेक्ट। आपको ये अटक चुका है रिफंड, आपको कब पता लगता है? जब आइस गेट पे जाते हो तभी पता लगता है, ठीक। और उसके पीछे कुछ एफर्ट डालते हो कि EGM हो जाए, शिपिंग कंपनी को बोलते हो, कराते हैं CH से करा दो, फोन करते हो, ठीक है। हाँ जी सर, EGM से बाहर होता है, पर EGM की वजह से है या किसी और की वजह से है, ये क्वेश्चन है। और कोई और एक्सपोर्ट जो कर रहा हूँ LUT में, जिसको बताओ कि मैं LUT में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई भी सर आपका नाम क्या? आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं वहाँ है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं कोई आदमी है तो कोई तो आदमी हाँ नहीं, मैं इसलिए सर होता क्या है कि पैसा आपका है, तो पैसा आपको कितना आना है, जैसे आज आप समझते हो कि बैंक अकाउंट से 80 लाख रुपए आ जाए। मैंने जब सबसे पहले जब IGST रिफंड 2022 में हमने ये ऐसा एक सोचा कि किसी को पता लग जाए ऑटोमेटिकली, तो मुझे आज भी याद है एक जबलपुर में एक्सपोर्टर थे, मेडिकल एक्सपोर्ट करते थे, और वो उनको रिफंड लेते थे तो या 2 साल बाद या 3 साल बाद उनको नहीं पता था कि यार ये सब क्या होता है, ऐसी जैसे आपने अभी जवाब दिया। और उनके अकाउंटेंट क्योंकि 2 साल बाद फाइल करता था तो उनको भी नहीं था यार इतनी बड़ी चीज होगी। वन डे उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म पे आए, बाई चांस है डॉक्टर थे, मेडिकल एक्सपोर्ट करते आए, और उनको पता लगा कि उनका 1 करोड़ अमाउंट का रिफंड होता है, पर 1 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में 25 दिन बाद आ गया। तो उनके लिए सिचुएशन ये है कि कैसे जान हो गया, क्योंकि ये तो 1 करोड़ अमाउंट है, तो बिग अमाउंट, और यही पता लगना एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा, क्योंकि फाउंडर्स को अकाउंट्स में घुसने की एक लेवल के अंदर चला रहा है, वो बोलता है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट वीक है, आज सबसे बड़ी कमजोरी है मैं 50 करोड़ आए थे फंडिंग से 50 करोड़ उड़ा दिए, मेरा फाइनेंस मैं नहीं कंट्रोल कर पाया, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं हर काउंटर को बोलता हूँ फाइनेंस की पकड़ अपने पास होनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस, हमने इसमें क्या किया, किसी भी फाउंडर को, किसी भी अकाउंटेंट के ऊपर ये आंसर ना पूछना पड़े कि भाई रिफंड कितना बनता है, तो मुझे 2000 रुपये बताइए। हमने इस सिचुएशन में आशीष इस सिचुएशन में दिस इज द प्लेटफॉर्म, मैं पहले प्लेटफॉर्म को दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ लगेगी कि क्या है इस प्लेटफॉर्म पे आदमी को एक्सपोर्टर्स, पहले मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोर्टर्स यहाँ ज्यादा है, और मैं रिफंड का होता है। आपका सवाल ये हो सकता है सर थोड़े ज्ञानी है तो इसलिए मैं सर को थोड़ा ज्यादा परेशान करूंगा कि यहाँ पे सबको ये पता होता है कि मेरा GST का क्रेडिट बैलेंस कितना है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्या है जो सामने दिखाना होता है, इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट की जो मैंने खर्चा किया मैंने रिटर्न में फाइल किया। तो सर सबकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जो अमाउंट आप सामान बाय करते हो उसके ऊपर आप GST देते हो, और वो GST देते हो प्लस आपने कोई मशीन बाय करी, आपने सर्विसेज बाय करी और कोई भी चीज बाय करी उस पर आपने GST दिया। अब आपने उसके बाद उन सामान को लेके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया और फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो हमारा हिंदुस्तान का ये रूल है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, ठीक है, ये प्रिंसिपल है हमारा हिंदुस्तान में। हाँ, so it is a WHO रूल कि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। अब इस सिचुएशन में हमारे जितना भी हमने टैक्स पे किया हुआ है इस अमाउंट को सरकार बोलती है कि आप उससे रिफंड ले लो क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया, दैट इज फर्स्ट। इसके बाद में अगर आप मैन्युफैक्चरर होते हो तो मैन्युफैक्चरिंग में आपने कोई सामान बनाया, जो सामान बना एज्यूमिंग 5 या 12 में, और आपने सामान बनाने के लिए जो खर्चा किया, पैकिंग मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लिया, जो भी लिया, उसमें 5 भी आया, 12 भी आया, 18 भी आया, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि मेरा आउटपुट रेट ऑफ टैक्स तो कम है, बट जो मैं सामान बनाने के लिए गुड्स यूज कर रहा हूँ वो रेट ऑफ टैक्स मेरा ज्यादा है। अब हमारे पास आज एक, मतलब मैं इस इंडस्ट्री का नहीं है बट मैं एग्जांपल एक बैंगलोर के मैन्युफैक्चरर थे जो, उसको मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर ट्रेडिंग करते थे, हनी बल्क में हनी लेते थे और छोटी छोटी शीशों में हनी बेचते थे। हनी की शीशियां जो आती थी वो आती थी 18%, जो शीशी की बॉटल है वो 18% की आती थी,
और धनी 5% में लेते थे या 5% में बेचते थे, उनको कभी ये पता ही नहीं लगा कि शीशी के ऊपर जो मैं अमाउंट पे करता जा रहा हूं, लोगों को लगता है कि मुझे 1-to-1 कोरिलेशन दिखाना है कि मैंने कितना शीशी का दिया उतने का ही मेरे को रिफंड मिलेगा। आंसर नो, इसकी प्रॉपर वर्किंग है। अगेन ये वर्किंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी अकाउंटेंट या सीए को समझने में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने आप में 3 दिन लगते हैं, क्योंकि इस वर्किंग में मल्टीपल जगहों से नंबर आते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम्स नंबर आने की, लेने की, हमने देखा जब हमने शुरुआत की कि किसी फाउंडर से पूछते थे ना, जैसे आपसे पूछा कि सर आपका क्रेडिट कितना है, या बोले क्रेडिट क्या होता है, तो हमने देखा कि वो फिर बोलते थे अपने अकाउंटेंट से लेके देते थे, और अकाउंटेंट को जो पता ही नहीं है तो वो आगे क्या समझाएगा। मतलब आप उस आदमी के सामने तो मत ही पूछो जो जिसको खुद नहीं पता, इसलिए आपको भी नहीं बताएगा। अब वहां पे हमसे यहाँ ले आए नाउ। अच्छा पॉइंट क्या है जो आज आप दोनों कर रहे हो, वो ये है कि एलयूटी में तो आपको डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, बट विद पेमेंट ऑफ टैक्स में सरकार ने बोला कि यार तुम किसी के पास भी मत जाओ और आपको आपका पैसा इमीडिएटली वापस अपने आप आ जाए विदाउट हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स लाइक मी, प्लेटफॉर्म्स लाइक मी, एंड वी प्रमोट दैट एज वेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसा जल्दी से दिया जाए मुझे या किसी और को यूज करो। अब यहाँ पर जो बिल पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन है उसमें पैसा जैसे आपने कहा 25 दिन से 30 दिन तक आ जाता है, बट इसके लिए आपको एक एक शिपमेंट की, वो एक एक अमाउंट की, क्रेडिट की एंट्री को चेक करना पड़ता है। इसमें हमने क्या किया, तो इसमें हमने क्या किया, जहाँ पे आपने जीएसटी नंबर लॉग इन किया ना, उसी के आज के टाइम पे डाटा शेयर करने के लिए दोनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग है। जीएसटी का प्लेटफॉर्म अलग है। जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपके पास ये रिफंड की रिपोर्ट कार्ड है, तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सर आपका रिफंड अमाउंट कितना है, क्योंकि आपने जितना पे किया आपको उतना ही मिलेगा, तो आपको ये तो पता है कि मैंने कितना मिलेगा। सर फाइनेंस आपके जैसे भी ओनर्स हैं जो अपने फाइनेंस को सोचते हैं ये जिम्मेवारी से कुछ की है। अब इस सिचुएशन में उनको क्या लगता है, ये 32 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये पेंडिंग चल रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि किससे पेंडिंग चल रहा है। अब यहाँ पे ग्रे मार्केट शुरू हो जाती है। ग्रे मार्केट क्या होती है, और वो 32 लाख रुपए अकाउंटेंट को बोलता है सर वो फंस चुका है, वो बोलता है फंस चुका है सर, बहुत सारी चीजें हो गई है सर, फंस चुका है सर, नावा से एक्सपोर्ट किया है सर, सीए को बोलना पड़ेगा सर वो वहां से बोलना पड़ेगा। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि एक समय में मेरे को भी अपनी एक टीम स्पेसिफिक लगानी पड़ती थी ये जानने के लिए, और फिर हम लोग अपनी टीम को बोलते थे कि वो जो कोर्ट पे टीम बैठी है, तो ये लोग टीम एट एवरी कोर्ट तो प्रोसेस में। तो हम हमारा क्या है, अगर यही काम आज कंसल्टेंट या लोकल आदमी जो कर रहा है या सीएचए कर रहा है, वो आपको ग्रे स्टोरी समझा रहा है, और जो ग्रे स्टोरी समझा रहा है ना आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आप तो कोर्ट में जाने सकते, तो आपके लिए सारी स्टोरी डिपेंडेंट है सीएचए। अब ये स्टोरी डिपेंडेंट ना हो पाए, यहाँ पे इस रिपोर्ट कार्ड से आपको इमीडिएटली पता लगता है 21 लाख रुपए बैठा हुआ है, और हमें पता लगता है 21 लाख रुपए बैठा हुआ है, तो हमारी टीम इसको इमीडिएटली आपको रिपोर्ट भेजती है, 21 लाख रुपए बताती है, और ये बोलती है सर 21 लाख रुपए पे आपको जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो देनी पड़ेगी, और आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में आएगा we will charge you then, we will not charge you till the time it is not credited into your account। मैंने उस लास्ट प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस की थी, जो 3 चीजें होती हैं, नेक्स्ट प्लीज, और तीसरा बीआरसी की डिटेल एक्सपोर्ट का रिफंड लेने के लिए। अब ये 3 चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट की डिटेल तो आपका सीआर भरना है रिटर्न्स में, क्योंकि आप जो इनवॉइस इशू कर रहे हो वो रिटर्न में भर देना है, तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी आता है। बीआरसी, अच्छा एक आंसर बताओ, कोई भी आंसर बताए, बीआरसी बैंक इशू करता है, कुछ काम करना पड़ता है? सर आप खुद करना पड़ता है, सब लोग खुद करते हैं? पूछ रहा हूँ, ये भी सवाल है बहुत बड़ा। मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं आप लो, तो मैं थोड़ी सी बेसिक से समझाया हूँ। जब भी हमारे को फॉरेन से पेमेंट आती है अपने पार्टी से, तो बैंक हमें इंटीमेट करती है कि आपके अकाउंट में कोई फॉरेन करेंसी ही हुई है। वो बैंक आपको बोलता है कि सर इसके शिपिंग बिल डिटेल्स मुझे भेजो जिसके अगेंस्ट में पेमेंट आई है। जब आप शिपिंग बिल की डिटेल्स भेज देते हो तो एक डिपार्टमेंट बैंक का एक सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, जहां पे वो इस पॉइंट को चढ़ाता है कि ये पेमेंट गुड्स के अगेंस्ट में है, सर्विस के अगेंस्ट में है। एक कोड होता है जनरल बैंक, तो कोड में उसको चढ़ाया जाता है, तो एक बैंक जनरेट करता है इनवर्ड रेमिटेंस, IRM जिसको बोलते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस नंबर आ जाता है।
फरवरी 2000 आपकी है, फरवरी 2024 ये पावर आपको दे दी है और ये जनरेट होता है अगेन ना जीएसटी से ना आइस गेट से। एक और प्लेटफॉर्म है उसका नाम है डीजीएफटी, दैट इज जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी जनरेट करता है। अब एक्सपोर्टर को 3 डिपार्टमेंट से हाथ डालने पड़ते हैं, पहला जीएसटी, दूसरा आइस गेट, तीसरा ये। अब हमने इसमें क्या किया, क्योंकि हम एसएमई के डील कर रहे हैं और लार्ज टिकट साइज डील करते हैं और हम एसएमई को ये बोलते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं बनाना, तुझे कुछ बनाना पड़ेगा तो कुछ बना के भी देगा। फिर उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, इस खर्चे को ऊपर नहीं मिलेगा। और ये आंसर आप अपने सीए से पूछते हैं, बहुत बार पूछते होंगे फोन करके, सर इस पे क्रेडिट मिल जाएगा क्या, सर उस पे क्रेडिट मिल जाएगा क्या। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक सवाल होता है। हमने कहा यार कितनी बार कितने सीओ से पूछोगे, या इस पे आपका सीए ने भी सवाल का आंसर सही दिया या नहीं दिया ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मतलब एक्ट को अंदर लेके तो नहीं बैठा हुआ कि उसमें भैया सारा साल, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी इतनी मैन पावर तो है नहीं। अब वहां पे हम बोलते हैं कि सर आपने रिफंड एप्लीकेशन नहीं कराई, आपने जो लेवल का ऑडिट करा लिया मुझसे, क्योंकि इसमें आपको पता लग गया कि आपने जो इनपुट टैक्स दिया है वो करेक्ट दिया है या इनकरेक्ट दिया है। और इस सिचुएशन में स्टैट ऑडिटर को जो बोलोगे एक लेवल पे मैं मानता हूं आपके साथ एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, बट जहां पे आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है जीएसटी। जीएसटी में आपने ये रिफंड फाइल नहीं किया। रिफंड फाइल करने का मतलब मैं समझता हूँ ऑडिट करा दिया, और ऑडिट हम जैसे आदमी ने रिफंड फाइल किया क्योंकि हम लोग बहुत सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, तो हमने रिफंड फाइल किया तो हमने एक लेवल का ऑडिट कर दिया। और आपको कल को ये एक्सपेक्ट है कि सर जब आपने मुझे रिफंड दिया था तो आपने सब चीजें चेक की थी, और जब चेक की थी सर रिफंड हुआ तो आपका ऑडिट हुआ, तो आपके पास कल को एक हमेशा ग्राउंड रहेगा कि भाई आप मेरे को इस पे ऊपर सवाल दोबारा नहीं उठाओ। तो इन प्रिंसिपल जहाँ पर आने का पालनपुर में ऑब्जेक्टिव बाइंग स्टेटमेंट का है कि आज तक हम अभी 2 सालों से हम लोग बहुत स्मॉल बिजनेसमैन के साथ अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हम यहाँ पे किसी को प्लेटफॉर्म नहीं बेचते, पहली चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम की टीम है, बट उस पर आपको कोई कॉस्ट इनकर नहीं करना। आज एक एसएससी का एक रेस्टोरेंट है, कॉफी मशीन का ब्लू टिकाए रखते हैं, नॉर्थ साइड में बड़ा फेमस है। वो बिजनेस में उसमें एक मशीनरी कॉफी की छोटी सी मशीन इम्पोर्ट कर रहा था और उस पर ड्यूटी पे करता था 10 लाख की साल। हमने उसे बोला कि सर ये जो आप ड्यूटी पे कर रहे हो ना, इसको ड्यूटी पे मत करो। एक सरकार की स्कीम है ईपीसीजी जहाँ पे उसमें बोलता है कि आपने कोई कैपिटल रिपोर्ट किया तो उस पर आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी, और आप ड्यूटी को एग्जाम करा सकते हो जितनी लगेगी। बताया कि शफेट की यहाँ पे मिसिंग है, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आने का ये था कि सबके साथ मिल जाए और इस रिलेशनशिप को आज स्टार्ट बनाए। और ये स्टार्ट बनाने के लिए आप खुद और आपके बिजनेसमैन फ्रेंड्स या आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, और हम सबकी मदद करने के लिए रेडी हैं। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम रिफंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को पैसा लगता है, हम ये सब तो मेरे को प्रॉपर पूरी फाइनेंस की उनको नहीं पता था जो, तो मैं उनसे वो उम्मीद नहीं कर रहा, तो मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट पॉइंट इज आपके पास वो बेनिफिट पहुंचने चाहिए, और पहुंचने के लिए रिफंड एक वन ऑफ द माध्यम है, और हमारे साथ जुड़ना एक वन ऑफ द माध्यम है। एंड देन दैट्स ऑल फॉर माय डे, एंड हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन। थैंक यू सर। हमारे चार्जेस बहुत ही स्टैंडर्ड है। हम लोग एक किसी के रिफंड एप्लीकेशन पे अगर कोई आता है, हम सिंपली बैंक की तरह काम करते हैं। 10,000 रुपये हम लोग लेते हैं मेंबरशिप पर एप्लीकेशन। गांधी सुमेजन से रिक्वेस्ट करूंगा किसान में 2 टक रेस्पेक्टेड डायस और प्रिय साथियों, आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट था। दोनों ही फाइनेंस से जुड़े हुए थे। दूसरा ये है कि हम हर व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, इसमें कोई हो रहा है भी नहीं, हमें पता नहीं कि या एक दूसरे के हेल्प लेकर के उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आज के सेमिनार में जो जीएसटी के बारे में आपने बताया, तो आपको लास्ट में शायद 4 चीज भी बताने चाहिए कि बस यू विल बी चार्जिंग अबाउट
Sir, we have already explained, sir, we explained everyone our charges. पहले एक बार मुझे टोकन क्लियर ही बोल रहा हूँ, जिस दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है उसके बाद हम चार्ज करते हैं जिसका अमाउंट आपके साथ ये मंथ पे एग्री होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिफंड अमाउंट 2% से 10% तक। छोटा अमाउंट होगा तो ज्यादा परसेंटेज होगा, बड़ा अमाउंट होगा और अगर ये अमाउंट आपका 2 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो ये परसेंटेज और कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आज हम किसी का हर महीने का 2 करोड़ का रिफंड कर रहे हैं अफेक्टिवली इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 24 करोड़, तो मेरे लिए वहाँ पे वो 2% ही, वहाँ पे हम परसेंटेजेस पॉइंट्स के ऊपर काम होता है, वहाँ पे हमारे लिए अलग लेवल की गेम है। बट यहाँ पे मैं ऐसे ही सेगमेंट में बैठा हूँ तो मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं बोल रहा हूँ, तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन जहाँ पे हमारी टीम मेरे साथ किसी को बात नहीं करनी पड़ती या मेरी किसी टीम के साथ मेरी मार्केटिंग टीम रिफंड अमाउंट आपको बताती है इमीडिएटली 2 मिनट में, और अमाउंट बताने के बाद आपको इमीडिएटली बताती है सर आपका प्रोसेसिंग फीस कितना शो कर रहा है। प्लेटफॉर्म के पास वो लॉजिक सब सेट है, मुझे उसको इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम लोग EPCH के साथ या EPCH के मेंबर्स के साथ या एसोसिएशन के साथ कोई टाइप करते हैं, आपके मेंबर्स आएंगे तो हम लोग उनको एक इंसेंटिव देंगे क्योंकि आपके मेंबर्स हैं, तो आपको भी उसमें एक ऑब्जेक्टिव मिलता है कि यार आपके मेंबर्स को कि भाई आप हमारे थ्रू जा रहे हो तो हम हुए और हम सब लोगों ने उसका फायदा उठाया। मंच पर सम्मानित मेरे बड़े भाई आपको भेजा थे और गुड आर्मी के अध्यक्ष श्री भानुभक्त सिंह और निशांत भास्कर जी और कपिल मानी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैसे तो बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सुना, सबसे पहले तो जो ये क्रेडिट के ऊपर बात हुई, एक्चुअली क्या होता है जैसे ECGC आपने देखा होगा कि वो एक्सपोर्ट का फाइनेंस होता है ना, उसका बीमा होता है, ये इंश्योरेंस, लेकिन इस तरह इसमें इन्होंने साथ प्लस है इंश्योरेंस के साथ साथ फाइनेंशियल फैसिलिटी भी है, लेकिन ये इन्होंने बोला कि 1% के ऊपर आपको इमीडिएट फाइनेंस मिल सकता है अगर आपका कोई, ये बहुत ही डेफिनेटली थोड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन है और बहुत ये आपके घर पे आपको इतनी बेनिफिट ये स्कीम दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और सेकेंडली जैसा ये बताया कि GST रिफंड के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट से GST रिफंड लेने के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, इन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक ये आपके सिस्टम पे आपको सारी बेनिफिट मिल सकती है, तो ये काफी कोऑपरेटिव है, काफी इजी रहेगा, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय और बहुत ही यूजफुल सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग मेरी हमसे गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट में रहें और इसका भरपूर लाभ होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पहले डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके अकाउंट में आएगा, कुछ लोग करते रहे बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ते हैं, तो उसे बचेगा और इसमें जो हमारे मिस और बहुत सारे टैक्सेस बच इंटर हो जाते हैं वो भी इसके साथ थैंक यू। उसके साथ ही आपको चाय के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, धन्यवाद। सर ये छोटा सा मैं रविंद्र मितानी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि निशांत भास्कर जी को श्री रामजी सुरेंद्र जी सर से रिक्वेस्ट करूँगा। वेलकम सर, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। ताकि हमें भी अपने इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प हो, और आपको सेशन कैसा लगा आप भी जरूर बताइएगा। माय लाइफ से रिक्वेस्ट करूँगा फॉर ए गुड फोटो।